Hello. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. So, so today's class is we have discussed that herein we will discuss about two more practical things. କାଲି जो practical ଥିଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ body language ବାବଦରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରେ ବସିଲେ କେମିତି କ'ଣ କଥା ହବା ଆଜି ଆଉ ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କଭରିଂ ଲେଟର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହବ ଗୋଟେ କଭରିଂ ଲେଟର ହବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯୋଉଟା ବାୟୋଡାଟା ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉଟା କମନଲି ଜାଣିଛୁ ତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଟର୍ମ ଅଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି କରିକୁଲମ ଭିଟେ କରିକୁଲମ ଭିଟା বা সিভি কমনলি আমি তো কହୁଛୁ সো সিভি লেখিবার যে তরিকা ଅଛି କେମିତି ইম্প্যাক্টফুল সিভি এই ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉଟା ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କଥା ହେବି ଯୋଉଟା ଏବେ ଡିସ୍କସନର ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ସେଟା ହେଉଛି କରିକୁଲମ ଭିଟା ବା ରାଇଟିଂ ଆନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ ସିଭି ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଯିଏ ଜବ୍ ଜବ୍ ସିକର୍ସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବ୍ ସିକର୍ସ ବୋଲି ଭାବିବା ଆମେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଛି ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପଢିଲେ କେମିତି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଖୋଜିବା ଆର ୟୁନିଟ୍ରେ କଥା ହେଇଛୁ ଆମେ ତ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କଲେ ଯେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ମୋର ସୁଇଟେବିଲିଟି ଅଛି ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ହେବ ଗୋଟେ କଭରିଂ ଲେଟର ଦରକାର ହେବ ଗୋଟେ କରିକୁଲମ ଭିଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ବିଷୟରେ ଡାଟା ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କେମିତି ଦେଇପାରିବା କେମିତି ଫୋର୍ସଫୁଲ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟାକୁ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ 7 ବ୍ଲକ 2 ର ଆମେ ଯୋଉଟା କାଲିରୁ ଅଧା କରିଥିଲେ କାଲି ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା ଆଜି ଆଉ ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ରାଇଟିଂ ୟୁର କରିକୁଲମ ଭିଟେ ବା ସିଭି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତ ସେଇଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ କରିକୁଲମ ଭିଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯିବ ଏଥିରେ ଯେ କେମିତି ଲେଖିଲେ ଫୋର୍ସଫୁଲ ବା ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ ସିଭି ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇ ବ୍ଲକର ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଜି ଦୁଇଟା ଡିସ୍କସନ ହବ ଗୋଟେ ସିଭି ଲେଖିବା ଏବଂ ସିଭି को इम्पैक्टफुली फोर्सफुली रिप्रेजेंट करवा ଏବଂ ଆରଟା ହେଲା ଫେସିଂ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ୟାନେଲ को ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା କେମିତି ଫେସ୍ କରିପାରିବା କ'ଣ କହିବା ଦିଟା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି ବା ଏଥିରେ ଦିଟା ପିଲାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ନବା ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ କରୁଥାନ୍ତୁ ବା ଆମ ପାଖରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସନ୍ତା how better we could present that. So let us start with. So what is a CV? If we start kariba CV कहले हमें कौन बुझिबा exactly from the beginning the introduction. Your curriculum vitae or CV is your most important weapon when it comes to job hunting. Your with your CV or resume you will be able to promote yourself. Prospective employers will often make a snap judgment as soon as they read it. So even the most qualified people on the planet can find themselves rejected if the resume fails to impress the interview board. So how can your CV catch the attention of an employer? That is the question. Question is how better. This is all about selling yourself, advertising yourself. That means making the recruiter जो जॉब देने वाला होता है उसको कन्विंस करना होता है कि हम ये जॉब के लिए सुइटेबल हैं. देयर मे बी मेनी कैंडिडेट्स बट आई एम द फिटेस्ट वन. सो ऐसे मुंह से तो बोलने से नहीं होगा ना, आपको पहले बताना पड़ेगा. जो लिख के देना पड़ता है वो होता है सीवी. तो फर्स्ट हैंड इंप्रेशन वो ये दैट इज रादर द ग्रेटेस्ट वेपन इन योर हैंड्स. सीवी के जरिए आप पहला इंप्रेशन क्रिएट करोगे. जितना भी नॉलेजेबल हम हो सकते हैं होते हैं, लेकिन सीवी अगर फर्स्ट इंप्रेशन में वो सीवी पढ़ के इंप्रेस नहीं हुआ तो शायद आपको शॉर्टलिस्ट करके बुलाएंगे भी नहीं कि इंटरव्यू के लिए. तो अगर नहीं बुलाएंगे तो गया उसमें मतलब. तो जब अप्लाई करते हैं तो साथ में जो कवरिंग लेटर या सीवी के साथ जोड़ के जो एप्लीकेशन लिखते हैं इसमें इतना फोर्सफुली हमें लिखना पड़ेगा कि जैसे ही जो पढ़े मतलब वो इम्प्रेस हो जाए कि हाँ यू मे बी ए बिगिनर. It doesn't mean that you have experience. Experience column को हम छोड़ देते हैं. We are quite new. You can write like that also. It is some technique. We will be discussing some of the beautiful techniques. The first thing that you have to go for, avoid making it too fancy or complicated. You only have about 5 seconds
बहुत जगह कैसा होता है, तो ये सीवी को पढ़ने के लिए उन लोगों के पास 5-6 मिनट 10 मिनट भी नहीं देते हैं वो लोग, तो फास्ट वो पढ़ लेते हैं जैसे आप लिखे हो मतलब अपने बारे में। तो सीवी में पहला चीज जो आता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि प्रोफाइल, आप किस में इंटरेस्ट हो, आपका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, आप किस पे ज्यादा ध्यान देके काम कर सकते हो। कोई जॉब के लिए, कोई कंपनी का जॉब आप कर रहे हो, आप इसमें अगर लिखे हो कि मैं टीम के साथ काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, दिलचस्पी रखता हूँ, मुझे टीम के साथ काम करना अच्छा लगता है, और यू पॉइंट आउट योर लीडरशिप क्वालिटीज ओवर देयर, सो चांसेस ऐसे होता है कि आपका जॉब जो है वो 50% 60% वहीं पे सिक्योर हो जाता है कि आप सोशिएबल हो। अगर आप हॉबी में लिखते हो कि मुझे किसी के साथ घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता, आई एम कन्फाइंड टू माई सेल्फ, मैं अपने आप में मस्त रहने वाला आदमी हूँ, ऐसे अगर तुम लिखते हो तो कंपनी लेवल पे वो जॉब नहीं मिलेगा, जैसे वहीं पे कट जाता है मतलब। क्योंकि कैसे कैसे होता है, हम अकेले सारे काम हम कर पाएंगे ऐसा थोड़ी ना होता है, तो एक पूरा टीम चाहिए होता है मतलब। तो सक्सेस के लिए कुछ टीम, कुछ ग्रुप के साथ करना पड़ता है काम। और आप पहले से अगर बोलोगे कि नहीं मुझे टीम में काम करना अच्छा नहीं लगता है, मैं अकेला काम करूंगा, तो वो सिंगल हैंडेडली वी कैन नॉट रीच एट ए टारगेट, वी कैन नॉट अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव। So that is the point. So herein it is written that most of the employers, it's a factual data, most of the employers, those जो जॉब देने वाले जो होते हैं, वो लोग 5-6 मिनट देते हैं आपको आपका सीवी पढ़ने में। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए सीवी का लेंथ। सेकंड पॉइंट, सीवी का लेंथ कितना होना चाहिए, आपका जो करिकुलम बेटे या अपने आप के बारे में, ये अपने आप को सेल करने जैसा बात है। मतलब आप बता के लिख के बताओगे, फास्ट एंड इंप्रेशन, फास्ट में लिख के बताओगे, जैसे पहले एप्लीकेशन में आपका एप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए। मानो एक एग्जांपल दे देने से आप समझोगे, जिससे आपको कुछ पैसा चाहिए, आप घर में जाते हैं तो मम्मी से या पापा से आपको कुछ पैसा निकालना है, तो आपका जो जरूरत है आप ऐसे बताओगे कि वो लोग अपने आप दे देंगे। ठीक है, आप 50 मांग रहे हो, आपको 100 रुपया मिल जाएगा, छुट्टा नहीं है, ये 100 रख ले बेटा और 50 लौटा देना। कोई हमें लौटाना नहीं पड़ता है, ये बात अलग है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने का जो मांगने का तरीका होता है, या जो कॉज हम दिखाएंगे, वो कॉज ऐसे होना चाहिए। कभी कभी पकड़ा भी जाते हैं, कॉलेज में मांगे हैं दे दो बोल के बोल देते हैं, और पापा की मम्मी अगर किसी ने कॉलेज के फोन करके काउंटर चेक कर लिए, मतलब कि सच में चाहिए होता है या नहीं, तो पकड़े भी जाते हैं। ऐसे झूठ मत बोलो, वहीं पे लिखा है कि सीवी में ऐसे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, दे वांट टू क्लैरिफाई इट, आपको बिना बताए वो लोग आप लिख दिए हैं। मैं कॉलेज में जब था, वो सारे मैं डिबेटिंग में हिस्सा लेता था, आई वॉज वेरी गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, और वो अपने मान लो किसी कॉलेज में जाके छानबीन कर लिए, फोन करके भी पूछ लिए ये रोल नंबर सच में ये था क्या, ये लड़का हाँ था, कैसे था, कोई डिबेट कुछ, तो झूठ मत लिखिए। मतलब झूठ के बलबूते पर हमें कुछ सफलता कभी हासिल नहीं होता है, नहीं भी होगा। तो बी ट्रू एंड ऑनेस्ट। तो सीवी का लेंथ हम बात करेंगे तो पॉइंट्स ऐसे धीरे धीरे आएगा, ऐसे सब बहुत सारे दिलचस्प पॉइंट इसमें है। तो सीवी का लेंथ, मैं जो सीवी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो सीवी कैसा होता है। सीवी मान लो, ये अभी तक हम क्लियर हुए पहले कि सीवी जो है, दिस इज ए फर्स्ट हैंड इंप्रेशन अबाउट सेलिंग योरसेल्फ। ये अपने आप में एक ऐसा चीज है कि आपको ये दिखाना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर, इस काउंटर पॉइंट पे मैं स्ट्रांग हूं और मुझे ये जॉब मिलना चाहिए। ये दिस इज ए टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मीन्स यू आर देयर ऑन डिस्प्ले टू बी सोल्ड। आप अपने आप को बेचने के लिए वहां खड़े होते हो कि मेरा ये पॉइंट स्ट्रांग है, इसलिए आप मुझे रखोगे। रिटन फास्ट एंड इंप्रेशन, दैट इज यू कैन से। सो लेंथ कितना होना चाहिए, सीवी लेंथ। देयर आर नो रूल्स, नो सेट रूल्स गवर्निंग द लेंथ ऑफ योर सीवी। सीवी के लिए कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। दिस विल बी डिसाइडेड ऑन योर करियर हिस्ट्री, एजुकेशन, अचीवमेंट्स। इफ पॉसिबल, ट्राई टू कीप इट टू 1 पेज or maximum of 2 pages. But if this looks too crowded, then spread it to over two sheets. If you write more than this, the employer has too much to read. उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, because they lead a very busy schedule.
सो उन लोगों के पास इतने टाइम ना लंबा नहीं होता है कि 2 पेज से ज्यादा लिखें, तो A4 साइज में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके बहुत सारे ओपन स्पेस और वाइड स्पेसेस होना चाहिए, छोटा छोटा शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस में छोटा पॉइंट्स में आपको ये लिखना पड़ेगा। मतलब एवरीवन हैज अ डिफरेंट थ्योरी व्हेन इट कम्स टू सीवी डिजाइन। आपका सैंपल सीवी बहुत सारे अवेलेबल है नेट पे, आप अगर देखोगे आज भी कोई कोई अगर देखना चाहते हो तो ये क्लास खत्म होने के बाद आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो कि सैंपल सीवी, तो सैंपल सीवी फॉर बिगिनर्स, सैंपल सीवी फॉर एक्सपीरियंस होल्डर्स, ऐसे करके कोई भी जॉब जो जिस जॉब के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो मन में, क्योंकि ये जो कोर्स है वो पहले का कोर्स इंट्रोडक्शन में पहले लिखा है कि ये एडल्ट लर्नर के लिए है। जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा वो लोग जब सिनेरियो पे अपने आप को देखेंगे, तो जब सिनेरियो पे अपने आप को जब देखोगे तो पहला काम होता है कि कोई पेपर पढ़ के आप एडवर्टाइजमेंट को ढूंढोगे पहले कि जॉब का एडवर्टाइजमेंट अपने हिसाब से, मैं पुलिस के लाइन में जाना चाहता हूँ, एएसआई बनना चाहता हूँ, एसआई बनना चाहता हूँ, एसपी बनना चाहता हूँ, उसी हिसाब से आप रिटन टेस्ट अगर देना है तो दे रहे हैं। तो बात ये है कि अपने आप जब अप्लाई करते हैं पहले तो ये जो सीवी है मतलब अपना बायोडाटा, अपना फैक्ट अबाउट लाइफ, अपना कैरियर, आप कैसे पढ़ते थे, पर्सनालिटीज में पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल क्वालिटीज आपका क्या क्या है, आप हॉबी में क्या जानते हैं, कितना लैंग्वेज आप जानते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो टीम में काम करना आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, आपका स्पेशल क्वालिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब क्या है, तो डिटेल्स में इसको लिख के देना होता है। लेकिन इतना लंबा भी नहीं कि पूरा 6-7 पेज हो जाएगा और इन लोगों के पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोग पढ़ें बैठ के, मतलब तो इसलिए आप 2 पेज में इसको सीमित रखिए। मतलब आप 1 पेज में अगर होता है और बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत क्लमजी हो जाता है वो पेज, इफ यू फाइंड दैट ऑल द डाटाज रेलेवेंट डाटाज अगर बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे सेंटेंस हो जाते हैं, पेज भरा भरा लगता है, जैसे ज्यादा भरा हुआ हो जाता है, तो स्प्रेड इट टू ए सेकेंड सीट मत, लेकिन 2 पेज से ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए प्रोफाइल को। कल हम बात कर रहे थे कि प्रोफाइल में जो पहला पॉइंट रहेगा वो है अपना सीवी या करिकुलम विटे, रेज्यूम जिसको बोलते हैं, तो ये क्या होना चाहिए जैसे, तो इसमें 2 पेज का रहेगा। एवरीवन हैज ए डिफरेंट व्यू, आप अगर किसी को पूछोगे वो अलग अलग सा बता सकते हैं कोई कोई, लेकिन बात यह है कि डोंट मेक योर डिजाइन वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज क्लियरली मार्क्ड इंक्लूडिंग योर कैरियर प्रोग्रेस, योर एजुकेशन achievement, your prominently, so your prospective employer doesn't have to search. ऐसे पॉइंट्स, ऐसे हेडिंग रहेगा। इस एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल पॉइंट आउट हाउ और वेयर टू प्लेस व्हाट मटेरियल्स, कौन सा मटेरियल को कहाँ रखना है, सीरियल कैसे रहेगा मतलब सीवी का और इंपैक्टफुल सीवी का, वो लास्ट में बता दिया जाएगा। तो तब तक आप धीरज रख के सुनिए कि क्या करना होता है। मतलब तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ये पहला इंप्रेशन होता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन आप पहली बार अगर किसी के ऊपर इंप्रेस करके मतलब उसके दिमाग में छा गए कि नहीं अच्छा है बच्चा, फोटो से भी कभी कभी हम देख देते हैं हाँ अच्छा लगता है, ठीक लगता है, स्मार्ट लगता है, तो अपीयरेंस भी स्मार्ट होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सेकंड चैप्टर आएगा जिसमें हम इंटरव्यू के लिए देखेंगे, तो इंटरव्यू में आप ड्रेस सेंस होता है, आप ड्रेस अगर बिना आयरन का पहन के गए हैं तो मतलब होता है यू आर नॉट सीरियस अबाउट थिंग्स। हाँ ऐसे हो सकता है, आप बोल सकते हो कि सर हमें एक्चुअली पसंद नहीं होता है, हम जैसे तैसे करके पहने तो है ना, तो पहनना और कॉर्पोरेट सेक्टर में पहनना मतलब जॉब की सिनेरियो पे जाना, जैसे मैं पहले बोला था कि हम जब जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम करते हैं, मानो हम जब बाहर निकलते हैं तो उसी इंस्टीट्यूशन का लोगो, उसी इंस्टीट्यूशन का प्रेस्टीज हमारे साथ जाता है। जैसे हम कॉलेज में अगर पढ़ाते हैं तो हम जब रास्ते में निकलते हैं, ये सर देखो ये सर जा रहे हैं, ये सर ये कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो कॉलेज का बैंड जो है वो लग जाता है। तो कॉलेज में अगर वैसे मतलब अपना ड्रेस जो सही सेंस में अगर ड्रेस नहीं पहनेंगे तो बाहर का लोगों का इंप्रेशन क्या होगा, अरे उनका टीचर तो ऐसे पहन रहे हैं तो बच्चे लोग क्या कर रहे होंगे वहां, क्यों डालेंगे बच्चे लोगों को ऐसे। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है, ड्रेस सेंस हुआ। तो ड्रेस सेंस जैसे आउटर इंप्रेशन होता है कि ड्रेस को देख के हमें पता चल जाता है कि ये ऐसा है कि ऐसा है, वैसे CV इज जस्ट लाइक द फर्स्ट हैंड इंप्रेशन ऑफ ऑल ऑफ यू पीपल, दोज हु वांट टू सेल योरसेल्फ और वांट टू गेट द जॉब। आप लोग जब जॉब के लिए निकलते हो, जॉब करने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो CV जो है वो CV है आपका एंट्रेंस टिकट, हॉल टिकट जैसा। तो हॉल टिकट जैसा उसमें अगर सही डेट,
सही पैसा, सही क्लास अगर मेंशन है तो आपको डायरेक्टली जो मैन है गेट पे वो आपको वही जगह पर लेके जाएगा। आप से फर्स्ट क्लास में घुसना चाहते हैं, सेकंड क्लास का टिकट पकड़ के जाएंगे तो वो जो आदमी है बैठाने के लिए बोलेगा कि आप सेकंड क्लास में जाइए। तो सीवी को आप ऐसे प्रिपेयर करो कि जैसे कोई देखेगा और अपने आप को आपके लिए आपको सोचेगा और दिमाग में सोचेगा नहीं ये लड़का ये बंदा ठीक है, शायद चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इंटरव्यू के लिए जब आएंगे तब और डिटेल्स में इसकी बात करेंगे, लेकिन अब इंटरव्यू का एंट्रेंस और जो हॉल टिकट जैसा बात हम कर रहे हैं अभी तो रिमेंबर टू इंक्लूड, आप क्या क्या रखोगे, देखो इसमें क्या क्या लिखना पड़ता है, जरूरी से क्या लिखना पड़ेगा। दैट इज कैरियर हिस्ट्री, स्किल्स एंड स्ट्रेंथ्स। स्किल्स आपको पता है, स्किल्स एबिलिटी जो होता है वो बर्न होता है, स्किल जो होता है एबिलिटी को हम अपने तरफ से खींचेंगे। जैसे टेलरिंग एक स्किल होता है जिसके चलते हम क्या कर सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं, लाइवलीहुड अपना गुजारा हो सकता है। जैसे व्हाट द लॉयर्स डू, अब में से कोई अगर लॉयर हैं तो लॉयर को देखें, या आपके घर में कोई लॉयर हैं तो आपको पता है कि लॉयर लोग क्या करते हैं, बकर बकर होते हैं, ज्यादा बातचीत ज्यादा करते हैं, लेकिन उसके चलते आप उनका रोजी रोटी उसी से कमाया हो जाता है, उनका कमाई मतलब इसमें से। तो क्या करते हैं, तरीके से बोलना, वो बोलते हैं कोई बोल के भी पैसा कमा पाएगा। चलो लॉयर लोगों को देखो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जज साहब ये इस पॉइंट पर मेरा वकील जो है वो बेगुनाह है, इनोसेंट है, वो कल्प्रिट नहीं है, जो कल्प्रिट बोल रहे हैं या पुलिस बोल रहा है या और कुछ डॉक्यूमेंट बोल रहा है ये बिना पर सच नहीं है, ये सही है। ऐसे आप बहुत सारे बार देखे होंगे कि आई एम नॉट टेलिंग यू दैट आप कल्प्रिट के साथ जाओ और उसको निकाल के ले जाओ, छुड़ा के ले जाओ, ऐसा नहीं। बट बात ये है कि मुझे जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इसके लिए कि हम सही से बात नहीं कर पाते हैं दूसरे लोगों के सामने, हमारा मुंह नहीं खुलता है ठीक से, लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसा है कि मुंह खोल के आप पैसा कमाओगे। बहुत सारे ऐसे फेमस लॉयर्स हैं जो जिनका प्राइस सुनोगे आप यू सिंपली कैन नॉट इमेजिन दैट वो लोग ऐसे कमा रहे होंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे वकील हैं जो सब ग्रेट लीडर्स भी हैं, और उन लोगों का जैसे कि मतलब सुनाई एक पैसे के लिए वो लोग लाख करोड़ तक कमा लेते हैं। तो मतलब है कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इतना पैसा उनको मिलता है, लेकिन क्या करने के लिए, सही से बताने के लिए। मानो तो ऐसे बोलते हैं कि सच को सच या झूठ को झूठ, और कभी कभी सच को झूठ या झूठ को सच, ये बोलने के लिए, तरीके से बोलने के लिए। तो तरीके से बोल के वो लोग कमा लेते हैं। मतलब तो ऐसे जो सीवी है वो इसमें क्या क्या रहना पड़ेगा, देखो क्या क्या पॉइंट्स मीन्स व्हाट यू हैव टू इंक्लूड इन इट। कैरियर हिस्ट्री, स्किल्स एंड स्ट्रेंथ्स, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आपको कैसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। मानो कोई इंप्रेस हो गया लेकिन आप कॉन्टैक्ट डिटेल लिखना भूल गए, फोन नंबर भूल गए, ईमेल एड्रेस भूल गए, तो आपको अगर वो सोचता भी है कि आपको शॉर्टलिस्ट करके बुलाएगा इंटरव्यू के लिए, कैसे बुलाएगा। तो वो पॉइंट है, जैसे ही आप अपना नाम पता लिखोगे साथ में आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी डाल देना। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में here is a basic format. Start off with your name, address and contact details clearly listed at the top of the page. Follow this with a profile of yourself which should include an outline of your skills, experience and immediate career goals. इसमें आपका कैरियर गोल आपको लिखना जरूरी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अगर टीचिंग के लिए कभी एग्जांपल डालता हूं तो सीवी डालता हूं तो उसमें मुझे कैरियर गोल एक लाइन करके लिखना पड़ेगा कि आई वांट टू ड्रॉ आउट द बेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स। मुझे स्टूडेंट में से जो छिपे हुए क्वालिटी होता है उसको निकालने में इंटरेस्ट है। नया नया स्टूडेंट को नया चीज बताना, उनको सोशियली सही करके, फिट करके, सुइटेबल करके भेजना मेरा काम है, मेरा लक्ष्य है। मैं उसी पे आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। ऐसे अगर कोई पॉइंट लिखता हूँ तो मुझे जो जॉब के लिए लेगा वो जरूर सोचेगा ही नहीं ये बच्चों के लिए हिसाब से, बच्चों के हिसाब से अगर बोल रहा है, बच्चों को निकालना, बच्चों के अंदर की क्वालिटी को निकालने के लिए कोशिश कर रहा है तो अच्छा टीचर होगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट हैंड इंप्रेशन। सो आपको कैरियर गोल के बारे में लिखना पड़ेगा कि आप कैरियर में क्या बनना चाहते हैं। एक इंटरव्यू क्वेश्चन कॉमन सा आएगा आगे चल के है कि
अपने आप को यहाँ से 5 साल के बाद, मतलब आप अगर 2020 में कोई इंटरव्यू के लिए बैठते हो तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि अपने आप को 5 साल में आप कहाँ देखना चाहोगे, वेयर वुड यू लाइक टू फाइंड योर सेल्फ जस्ट आफ्टर 5 years। यहाँ से 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे, तो कहाँ देखना चाहोगे, आप बोलोगे कहाँ देखना चाहूंगा, घर में देखना चाहूंगा, अर्थ पे देखना चाहूंगा। ऐसे नहीं होता है, मतलब कि जिस जॉब में हम हैं तो उसी जॉब में कितने दूर तक आप जाना चाहोगे, मतलब आपका अल्टीमेट एम क्या है, खुद का एक कंपनी खुलना या सीईओ तक की पोस्ट, सबसे अव्वल नंबर की पोस्ट तक, नंबर 1 पोस्ट तक पहुंचना। तो इसमें आपको 2 चीज, आप तो सीखते हुए आगे बढ़ोगे ना, लेकिन आपको बढ़ने का भूख है ये भी पता चलना चाहिए। आपका जो जॉब जो देगा वो जानता है कि आपके पास कितना पोटेंशियल है, आपको मालूम नहीं है कि आपके पास क्या पोटेंशियल है। अरे कभी कभी ऐसे भी होता है, ह्यूमन, हम लोगों को पता नहीं होता है, हम में से कोई एक ऐसा ह्यूमन ब्रेन है जो रोबोट बनाता है, जो कंप्यूटर बनाता है। तो आप क्या कर सकते हो, मुझे क्या कर सकते हो, हाँ हमें कुछ नहीं आता है सर, हम पूरा गांव से निकले हैं, हम तो पढ़े नहीं ठीक से सर, स्कूल तो टाइम नहीं मिला, कॉलेज सही से जा नहीं पा रहे हैं इसलिए इग्नू में कोर्स किए हैं। तो इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि आप इग्नू में कोर्स किए हैं या कहीं बाहर से या कोई रेगुलर कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आपको बात है कि ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाई, ग्रेजुएशन लेवल का बातचीत, ग्रेजुएशन लेवल का सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर या अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तरीका आपको अगर सही मायने में पता है तो कोई जॉब के लिए आप लिखते हो तो बीए उनका क्वालिफिकेशन है कि आप बीए पास करोगे, वहीं पे लिखा नहीं होता है। तो बीए पास लिखा होता है, कहीं नहीं लिखा होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से बीए पास करने से होगा, इग्नू से पास करने से नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखा जाता है। बीए पास करना जरूरी है। आप अगर बीए पास किए हो, सही में बीए पास किए हो, सही में बीए पास का मतलब ये होता है कि बीए पास करने वाला लड़का जिस लैंग्वेज के साथ बात करना चाहता है या जिस मैच्योरिटी के साथ अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा या जानता है, तो यू विल गेट द जॉब। वो हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आपको सर्टिफिकेट एक दिखाना पड़ेगा कि आप स्नातक हो, मतलब बीए पास किए हो, उसके बाद आप जा सकते हो। इवन कलेक्टर्स बनने के लिए क्या होता है, तो आपको बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएट होना है, कोई स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएट बनना पड़ेगा। तो जैसे ये है, आप अपने आप को जैसे साबित कर सकते हो। तो कैरियर गोल या आप कैरियर में बनना क्या चाहते हो आपको क्लियरली उसका वहां मेंशन करना पड़ेगा, कैरियर गोल्स। आफ्टर दिस यू कैन पुट इन योर कैरियर हिस्ट्री इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब फर्स्ट, अगर आप में से कोई जॉब कर रहा है या पहले से एक्सपीरियंस है तो आप वो एक्सपीरियंस को लिखना। वो एक्सपीरियंस कैसे लिखेंगे, मतलब 2019 में आप जिस पोस्ट पे थे उसको अभी 2020 के लिए अगर कहीं से कहीं के लिए कहीं पोस्ट के लिए आपको सीवी डालना होता है तो 2019 में आप जहां थे उसको आप लिखना, फिर 2018 17 ऐसे रिवर्स क्रोनोलॉजिकली। रिवर्स क्रोनोलॉजी इसके इमीडिएट पहले क्या करते थे, उससे पहले क्या करते थे, उससे पहले क्या करते थे, ऐसे अगर लिखोगे। अगर जब एक एक्सपीरियंस है, जो जब एक एक्सपीरियंस जिसके पास नहीं है, तो जो न्यू होते हैं वो लोग न्यू हैं, तो वो तो पहले दिस इज माय फर्स्ट एवर जॉब, तो यू कैन क्वाइट इजीली गो फॉर दैट। So after this you can put your career history in reverse chronological order over the past 10 years। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ऐसा ज्यादा है तो आप पिछला 10 साल का हिस्ट्री भी लिख सकते हैं उसमें, with brief description of your responsibilities and achievements। वहां आपको जो जो अचीवमेंट्स मिला है, आपका काम को कोई पसंद किया है, आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, आपको कोई प्राइज मिला है, आपको कहीं बाहर कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए सुযোগ मिला है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और साथ में आप क्या करते थे, मतलब आपको करना क्या पड़ता था, मतलब तो उसको डिटेल में उसको आपको वहां लिखना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस में जाता है। स्टिक टू द ट्रूथ ऑलवेज। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जैसे मैं बोला था कि झूठ के सहारे आप आगे बढ़ नहीं पाओगे ज्यादा देर तक। तो मेक श्योर योर सीवी इज प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी A4 साइज पेपर एंड नेवर अटैच एक्स्ट्रा documents, latest certificates। You can take these along for the interview। read and reread your CV। आप CV में जो लिखोगे उसको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि उसी में से आप लिख दोगे, आपको खुद का पता नहीं होगा। आप जैसे आप लिखे हैं कि आप 50 तो ऐसे कर सकते हैं, आप 50 बार बाहर घूमने के लिए गए हैं, तो आप तो नहीं गए होंगे और लिख दिए होंगे, तो चलो ठीक है, आप जो 50 नंबर आपका जो 50 बार बाहर गए हैं, तो 50 नंबर जो प्लेस था उसी प्लेस के बारे में हमें कुछ बताइए। अगर ऐसे बोल देता है कोई, आप गए नहीं सच में 50 नंबर, लिख दिए हो कि कितने बार बाहर गए हो, 50 बार से ज्यादा,
तो 50 नंबर में कहाँ गए थे, थोड़ा बोलिए। बोलने से क्या बोलेंगे हम? तभी जाके आपको अगर बोलोगे कि नहीं मैं ऐसे झूठ में लिख दिया था, सच में 5 जगह गया हूँ और 5 नंबर का जगह ये है। तो उड़ीसा से बाहर कितने बार गए हो, हम लिख देते हैं 1-2 बार। और कहाँ कहाँ गए हो पास में लिख देते हैं, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ऐसे करके लिख देते हैं। और सच में अगर बोलेंगे तो अच्छा ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ जाएंगे, किस तरफ से जाएंगे? अच्छा, पहला जो चौक आएगा उस चौक का नाम बताइए। आप अगर कभी गए नहीं तो आप बता नहीं पाएंगे, तो वहां आपका चोरी पकड़ा जाएगा, मतलब झूठ पकड़ा जाएगा, और यू विल हैव ए बैड इंप्रेशन, यू विल क्रिएट वन बैड इंप्रेशन ओवर देयर. So that point is, make sure your CV is printed on good quality A4 size paper, and never attach extra documents, letters or certificates. You can take these along for the interview, read and reread your CV, and then ask a friend or family member to read it well. Because वो मिस्टेक्स वहां अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा या कोई लाइन छूट छूट जाएगा, आप गलती से आपको आप ही लिखे हो तो बार बार आप पढ़ोगे, वो जो मिस्टेक है वो पकड़ा नहीं जाता है। तो कोई दूसरा आदमी, कोई फ्रेंड या कोई दोस्त आपका पढ़ लेता है, कोई फैमिली मेंबर भी आपको पढ़ लेता है, तो पढ़ के वो सच में बता देता है, तो मिस्टेक का चांसेस कम रहेगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ट्रूथफुल. नेवर ट्राई टू स्मॉज डेट्स एंड जॉब्स टू हाइड पीरियड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आप अगर अनएम्प्लॉयड हो 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो उसको भी क्लियरली मेंशन करो. जैसे ऐसे कि नहीं बीच में मैं इधर उधर कुछ काम कर रहा था लेकिन डाटा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऐसे मत बोलो. बी ट्रूथ, बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट. Follow all instructions on the job advertisement. If they want 4 copies of your CV, then send 4 copies. And it is also important to get it in on time. Once again, remember your CV is the first impression. First impression को bold letter में लिख के आपको बताया गया है इस बुक में. The CV is the first impression that one employer has of you. उसको पढ़ के आपके बारे में मोटा मोटी जो पहला इंप्रेशन उसका जो रहेगा वो सीवी से रहेगा. इसलिए सीवी जो है वो सबसे बढ़िया तरीके से होना चाहिए. तो इसमें कुछ एक्टिविटीज से पहले हम क्या करेंगे, हम आएंगे कि ओन सीवी, अपना सीवी हम कैसे लिख पाएंगे. जैसे मैं बोल रहा था, अपना सीवी हम कैसे लिख पाएंगे, इसमें क्या क्या पॉइंट्स रहेगा. यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड इन राइटिंग सीवी इन दिस यूनिट, राइट ए गुड सीवी फॉर योरसेल्फ. अपने आप का सीवी जैसे कीप इन mind the ideal job that you are looking for. Before you actually start writing, organize the points under the various headings of a good CV. If you are writing a CV for the first time, include any work experience that you have. This could be unpaid, voluntary, summer jobs, internship, or extracurricular activity. You can use the following template to write your CV. Feel free to make changes to the template according to your needs. आप ये नीड्स को भी इधर उधर कर सकते हो. पेज नंबर 39 में ब्लॉक 2, ये कोर्स का ब्लॉक 2 में, ब्लॉक 2 का 39 पेज में है. ऊपर हेडिंग देखो करिकुलम बिटे, एंड देन जो डेस्क दिया है उसमें अपना एड्रेस, नेम, टेलीफोन नंबर ऐसे लिखना. इसके बाद प्रोफाइल, और प्रोफाइल में आप क्या करोगे, प्रोफाइल में अपना कैरियर गोल, ऑब्जेक्टिव्स, आपका स्ट्रेंथ, क्या क्या आप अच्छे कर सकते हो, सबसे अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो. इसके बाद एजुकेशन डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स में आप क्या क्या पढ़े हो. तो मैट्रिक से लेकर के हायर क्वालिफिकेशन तक आपके पास जो है लेटेस्ट हायर क्वालिफिकेशन जो है उसी हिसाब से लिखना. देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कहीं अगर जॉब एक्सपीरियंस है, कहीं भी मतलब छोटे कोई हफ्ते भर के लिए भी आप काम किए हो, 6 महीने के लिए भी, 2 महीने, 3 महीने या 1 साल, 2 साल, जो भी है, अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप लिखो. नहीं तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आई मेड एन अटेम्प्ट इन दिस जॉब, यू कैन राइट लाइक दैट, यू आर वेरी न्यू फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब. तो एडिशनल स्किल में आप यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर लिख सकते हो. जैसे मैं बोला था कि आप में से कोई अगर अच्छे से मतलब गेम्स में, स्पोर्ट्स में कहीं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट प्लेयर है या स्टेट में कोई खेलने के लिए गया है, इवन किसी ने 2, 4, 5, 6 बार ब्लड डोनेशन कैंप सब जो होता है उसमें किया है, या जो सोशल फॉरेस्ट्री का काम होता है तो उसमें कहीं गया है, या कोई क्लब की तरफ से काम किया है, उसको वहां से सर्टिफिकेट अगर मिला है तो यू कैन राइट ओवर देयर.
that suggests them that you are socially good, and as you are socially good, so you can think of the betterment of society, so they will hire you, they will be hiring you, they will hire you. So आपको ये पॉइंट में ऐसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट करके मेन पॉइंट्स में, ए सीवी हेल्प्स इन जॉब हंटिंग बाय गिविंग ए फर्स्ट ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ वंस अचीवमेंट्स टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर जो आपको जॉब देगा, तो उसके ऊपर क्रिएट करने के लिए, अपना पहला इंप्रेशन जमाने के लिए सीवी इज द वेपन। If a CV is not clear and readable, it will get rejected. Most employers only spend 5 seconds on a CV. It is not always true, but in some cases, maximum 5-10 minutes वो लोग देते हैं। तो a CV should not be more than 1 or 2 pages. We must choose the information that will go into the CV. आपको CV में ऐसे पॉइंट्स, ऐसे छोटा छोटा लाइन या ऐसे कैची फ्रेज यूज करना पड़ेगा कि जैसे लोगों को ज्यादा, मतलब ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा या ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ लिखे हो तुम अपना स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में। सो आई विल इंक्लूड माय कैरियर गोल्स इन माय प्रोफाइल। इसमें आपको अपना कैरियर गोल के बारे में बताना पड़ेगा कि आप बनना क्या चाहते हैं आगे चल के, आगे जाके आप क्या बनना चाहते हैं, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। मतलब कि आपको जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछा कि यहाँ से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना पसंद करोगे, किस पोस्ट पर, किस बिना पर, किस जगह पर, मतलब in which place you would like to see yourself from here after 5 years or 10 years even. By reading through your CV, a friend can help you. अगर लिखने के बाद, खत्म करने के बाद, मतलब CV प्रिपेयर कर लेने के बाद किसी फैमिली मेंबर को, किसी दूसरे आदमी को इसको पढ़ा लो एक बार, क्योंकि उसमें उसके आंख में जो मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, कमा फुल स्टॉप का जो मिस्टेक हो, ये थोड़ा उसके आंख में आ जाएगा, क्योंकि आप ही खुद लिखे हो, तो आप जितने बार देखोगे आपको सही पढ़ा जाएगा, मतलब आप पढ़ लोगे, ऐसे पढ़ते पढ़ते पढ़ लोगे, क्योंकि आप तो खुद लिखे हो ना। तो इसलिए जो मिस्टेक्स है वो ज्यादा पकड़ में नहीं आता है, कोई दूसरे आदमी को उसको पढ़ा लेना चाहिए। एंड वन शुड नॉट लाई इन द सीवी। आप झूठ मत बोलो सीवी पे, कोई सुपरफिशियल रिमार्क्स अपने आप के बारे में बढ़ा चढ़ा के कोई झूठ बता नहीं देना, ये गलत होता है। अगर पकड़े जाओगे तो इट विल क्रिएट ए ब्लंडर। मोस्ट एम्प्लॉयर्स विल चेक ऑन द बेसिक डिटेल्स। लाई विल ruin ऑल द चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब। ये शॉर्ट में हम सीवी लिखना सीख गए जैसे। सो इसमें आपको एक कंसल्टेंट कैसे बोलते हैं सीवी के लिए, इसका लिसनिंग सेक्शन है। आप लोगों के पास अगर बुक है, डाउनलोड करके देखें तो पेज नंबर में हम जाएंगे। अभी एक डायरेक्ट एग्जांपल कोई कंसल्टेंट दिया है कि कैसे आपको अपने आप का जो सीवी है आप कैसे लिखोगे, मतलब टेप स्क्रिप्ट में। विथ सीवीज फर्स्ट इंप्रेशन आर एवरीथिंग। सो फॉर सम वैकेंसीज एम्प्लॉयर्स रिसीव an enormous number of applications, so it is important. You see, underline, you can, if you have the books at page number 41, I am reading it out. So it's important that your CV stands out from the rest. बहुत सारे लोग डालते हैं CV, तो आपका CV जो है वो सबसे अव्वल अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। The uniqueness must be there, the application. So it's important that your CV stands out from the rest. Firstly, it should look good, well presented, with a clear layout, with lots of white space, so that the information can be located easily. Secondly, you should choose your points carefully so that your CV is concise and relevant. ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं। एक पेज में होता है तो एक पेज में लिख लो, अगर एक पेज में नहीं होता है तो you can write it in 2 pages. 2 पेजेस से और ज्यादा लंबा नहीं करना। और अगर लंबा होना है तो आपको प्रोफाइल जाना पड़ेगा, जो कल बात किए थे हम, हाउ टू राइट ए प्रोफाइल। जब प्रोफाइल, अपने आप का प्रोफाइल कैसे करोगे, आजकल नेट पे बहुत सारे एग्जांपल्स इसका अवेलेबल है, आप देख सकते हो इसमें। तो सेकेंडली, यू शुड चूज योर पॉइंट्स केयरफुली सो दैट योर सीवी इज कंसाइज एंड रेलेवेंट। कीप इट टू 1 पेज इफ यू कैन। अगर हो सकता है तो एक पेज में लिखिए। use the spell check on your computer, use appropriate phrases perhaps from the job advertisement या जॉब सिनारियो पे जिस जॉब के लिए जैसा फ्रेज या वर्ड चयन करना होता है उसको करो। टू एक्सप्रेस योर अचीवमेंट्स एंड एबिलिटीज,
अपना अचीवमेंट और एबिलिटीज को दिखाने के लिए टू सम अप, जो आपको जल्दी जल्दी में सम अप करने के लिए अगर पड़ेगा तो कैसे करते हैं। द कीवर्ड्स आर क्लैरिटी एंड इम्पैक्ट। दो चीज आपको ध्यान रखोगे कि सीवी में आप क्लियर कट सब डाटा लिखोगे, उस वो क्लियरिटी होना चाहिए, देन इम्पैक्ट, देन इम्प्रेशन, मतलब इट मस्ट बी sufficiently equipped to create first hand impression on the person who reads it, because they read it with a purpose, definite purpose. A good CV can go a long way in getting your that all important जॉब इंटरव्यू को आपका जो एंट्रेंस होता है, जैसे मैं बोला कि ये हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड जैसा, तो एग्जाम हॉल में जैसे जाते हैं साथ में एडमिट कार्ड होना चाहिए, ऐसे जॉब के लिए जब जाते हैं या इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होने के लिए, कोई एम्प्लॉयर आपको जब देने से पहले जब बुलाएगा इंटरव्यू के लिए जब बुलाएगा, तब जिसको देख के, जिसके बिना पर आपको बुलाएगा, वो होता है सीवी। तो इसलिए आपका सीवी इतना इंप्रेसिव होना चाहिए, इतना इंपैक्टफुल होना चाहिए, इतना फोर्सफुल होना चाहिए कि कोई पढ़े तो इंप्रेस हो जाए, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं ये बंदा कैसा है, क्योंकि इंटरव्यू का मतलब वही होता है। नेक्स्ट यूनिट जो हम बात करने के लिए जाएंगे उसमें होता है फर्स्ट हैंड इंप्रेशन में बोल देता हूँ कि इंटरव्यू, इसको जब प्रोनाउंस करते हैं इंटरव्यू, अर्थात वो लोग आपको देखना चाहते हैं, इसलिए सारे इंटरव्यू जो होता है, आजकल टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो रहा है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इंटरव्यू मीन्स इंटरव्यू, आपको पूछना, आपको देखना, आपको सुइटेबिलिटी को जज करना, मतलब कि जब लिख दिए हो सीवी पे कि आई एम 6 फीट इन हाइट, मैं अगर कभी लिख देता हूँ मैं आई एम 6 फीट इन हाइट, और लोग इंटरव्यू में देखेंगे अरे मैं तो 5 फीट के आसपास का हूँ, तो 6 फीट कैसे लिख दिए, तो उसके लिए they want to see you in detail, see you physically, they want to judge you from your psychological strength, आप डरते हो नहीं डरते हो, आपका सोशिएबल क्वालिटी क्या होता है, आप चिड़ टाइप का आदमी हो, जल्दी जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप जब सिनेरियो पे कंपनी के साथ काम करना आपको पसंद नहीं रहेगा, आप कर नहीं पाओगे, मतलब क्योंकि बहुत सारे वहां तो आपके ऊपर जो सुपीरियर्स रहेंगे, सब जो बॉस रहेंगे, वो बॉस का काम होता है डांटना, आप डांट नहीं सह पाओगे, आप अपने आप को बोलोगे मुझे घर में कोई गाली नहीं देता था, यहाँ इतना गाली सह के काम करूंगा तो गया, मतलब यू शुड नॉट बी, so that is why they want to see you physically whether you are suitable for the job or not, so that is why they ask you for interview. But before going to interviews, let me discuss the most important thing over here. It is they are written your grammar activities for this unit is revising tenses. आपको टेंस के बारे में थोड़ा, टेंस जो होता है वो हमको टेंस करके रख देता है हर बार, इंग्लिश में अगर इंग्लिश ग्रामर में कोई चीज आपको टेंस करके रखा है वो होता है टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। आपको लगता है आप सही टेंस में सेंटेंस लिखे हो, लेकिन सेंटेंस जब मार्क्स आता है आपको पता चलता है कि मार्क्स कट जाता है, और कहाँ कट जाता है, दो चीज में कट जाता है, एक स्पेलिंग मिस्टेक के लिए कट जाता है, दूसरा सही सेंटेंस नहीं होता है, ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं होता है। ग्रामेटिकल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, उसमें जो वर्ब्स रहता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्योंकि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश जो होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का। ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛୁ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ କଣ ନା କର୍ତ୍ତା ଆଉ କ୍ରିୟା ଦିଟାକୁ ଠିକ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଯିଏ କରେ ବା କରାଏ, ଯାହା ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସିଏ କର୍ତ୍ତା ହବ, ଏବଂ ଯାହା ସେ କର୍ତ୍ତା କରିବ ସେଇଟା ପ୍ରେଡିକେଟ ପାର୍ଟ ହବ, ବିଧେୟ ହବ, ସେଥିରେ କ୍ରିୟାପଦଟେ ରହିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିବ। ତ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରେଡିକେଟ କୁ ନେଇକି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ वर्ब s प्लस v इज द स्मॉलेस्ट सेंटेंस यूनिट। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई, आई ईट, दे गो, दो वर्ड ही खाली रहा, सब्जेक्ट में एक रहा और प्रेडिकेट में एक बात रहा, मतलब दैट इज द थिंग। सो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा पहले, और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगाना पड़ेगा। और जो वर्ब होता है वर्ब का काम होता है टेंस। तो टेंस क्या होता है, तो टेंस मतलब कि कोई भी एक्शन हुआ, इवेंट हुआ, होने के लिए टाइम चाहिए होता है, और टाइम रिलेशनशिप ऑफ एक्शन, कोई भी एक्शन का टाइम रिलेशनशिप को किसके जरिए हम बात कर सकते हैं, किसके जरिए हम लिख सकते हैं, टेंस के जरिए लिख सकते हैं। तो किसका टेंस रहेगा, वर्ब का। इंग्लिश वर्ब से टेंस फॉर्म्स ओनली, इंग्लिश वर्ब्स का टेंस फॉर्म है। और आपको जो टेंस फॉर्म है वो तो टेंस प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है, क्योंकि वर्ब का दो फॉर्म होता है, V1 प्रेजेंट टेंस के लिए और V2 पास्ट टेंस के लिए। जो V3 या V4 ऐसे हम बात कर रहे हैं, ये सब
नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स होते हैं अपने आप में इनकम्प्लीट होते हैं, तो इसलिए कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर आपके साथ बात करता हूँ तो ऐसे में बोल सकता हूँ आई गो का मतलब है आई गो मुंह जाए, वी गो, आई वेंट, और आई गोइंग इसका कोई मतलब नहीं होता है। एम गोइंग बोलने से जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, और वॉज गोइंग जा रहा था, विल बी गोइंग जाने वाला हूँ। सो गोइंग का खुद का मतलब नहीं होता है, गोइंग होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो गन होता है जीओएनई और भी थ्री फॉर्म्स होता है वो भी पार्टिसिपल होता है। मतलब आई हैव गन, आई गॉन लिख देने से, आई गॉन लिख देने से द इनकम्प्लीट वन, जो कंप्लीट नहीं होता है अपने आप में अगर कंप्लीट नहीं होता है तो कंप्लीट सेंस नहीं मिल पाएगा। मतलब हम जब आई गो लिखते हैं इसका एक मतलब निकलता है, आई वेंट के साथ भी एक मतलब निकलता है, लेकिन आई गॉन या आई गोइंग इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो एज द वर्ब हैज नो थर्ड टेंस फॉर्म, तो इंग्लिश में दो ही टेंस फॉर्म है। और सेल विल मॉडल के साथ हम फ्यूचर लगाते हैं, वो ट्रेडिशनल फ्यूचर फॉर्म्स है, उसके बारे में एक दिन बात कर लेंगे। इसमें बुक में भी खाली प्रेजेंट और पास्ट का फॉर्म दिया है। तो जो काम है, जो काम के बारे में हम बात कर रहे हैं ये करते हैं माने एवरीडे हैबिचुअल एक्शन के लिए। तो जो हैबिचुअल एक्शन का होता है, रेगुलर एक्शन का होता है, वो प्रेजेंट टाइम के लिए होने से सिंपल प्रेजेंट होता है, पास्ट टाइम के लिए होने से पास्ट सिंपल होता है। সাধারণ অতীত বা সাধারণ বর্তমানকে কথা আমি পাইবা সেটা কেমন করুଛୁ মানে প্রেজেন্ট টেন্স রহলে সবজেক্ট প্লস v1 ফর্ম অফ द verb বা পাস্ট রহলে সবজেক্ট প্লস v2 ফর্ম অফ द verb। ए अनुसार आम लगे करवा पुणी तापर जो आम आईएनजी फॉर्म कथा कहूँ प्रोग्रेसिव, तो फॉर्म इटसेल्फ सजेस्ट द मीनिंग, फॉर्म इज द वर्क इज इन प्रोग्रेस। तो जो काम चालू है बोलने के टाइम में, जो काम चालू है, और बोलने का टाइम अगर पास्ट है तो जो काम चालू था। आज हम ब्लॉक 2 का 2 यूनिट बात कर रहे हैं, कल हम पिछले 2 यूनिट का फर्स्ट 5-6 को बात कर रहे थे, इसी टाइम में कल कर रहे थे। तो पास्ट हो गया टाइम कल, तो कल ये काम चालू था, आज ये काम चालू है, आज चालू है बोल के भी आईएनजी के साथ लगाएंगे। वी आर डिस्कसिंग टेंस फॉर्म नाउ, वी वेयर डिस्कसिंग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या ओब्लिगेटरी मॉडल्स यस्टरडे। कल हम लोग ओब्लिगेटरी मॉडल मस्ट, शुड इसके बारे में बात किए थे, आज हम नॉर्मल टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा है, मतलब तो जब बोलते हैं तब होने वाला काम तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है। अगर टाइम पास हो जाएगा तो पास्ट प्रोग्रेसिव हो जाता है। और ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब को लगाएंगे, इसके साथ हैव लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस v3। और परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म भी होता है, इसमें आपको सब पता है थोड़ा थोड़ा, अब खाली याद करके देखो कि वो सही है कि नहीं। जैसे हम स्पोकन फॉर्मेट में ये दो फॉर्म को ज्यादा यूज करते हैं कि आई हैव टेकन माई लॉन्च, इसका मतलब होता है प्रेजेंट रेलेवेंसी है कि आपको अभी भूख नहीं लग रहा है कि बिकॉज यू हैव टेकन योर लॉन्च। आप अभी कोई बढ़िया सा देने से भी आप क्या नहीं कर पाओगे, लॉन्च नहीं खा पाओगे, थोड़ी देर के बाद खा पाओगे, अभी खा नहीं पाओगे। दैट इज प्रेजेंट रेलेवेंस, अभी आपको भूख नहीं लग रहा है, मतलब क्योंकि आप लॉन्च खा के आए हो या खा चुके हो। तो जब बात करते हो हैव यू एवर टेकन योर लॉन्च, हैव यू टेकन योर लॉन्च, यस, सब कोई यस बोलेगा, मतलब कि जो लॉन्च का टाइम है वो ऑलरेडी बीत चुका है, तो आप लोग खा चुके हो, इसलिए अभी आपको भूख नहीं लग रहा है, यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू ईट। ओके, सो दैट इज व्हाट मींस प्रेजेंट रेलेवेंस रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, प्रेजेंट रेलेवेंस नहीं रहेगा तो हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट लगाएंगे। तो आई हैव लॉस्ट माई पेन, उसका ये एग्जाम्पल का मतलब होता है कि चांसेस है मैं मुझे मेरा पेन मिल सकता है, लेकिन आई लॉस्ट माई पेन, आई लॉस्ट माई पेन यस्टरडे, मैं कल मेरा पेन गुम कर दिया, कहीं गुम हो गया मेरा पेन। इसका मतलब है कि आप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, यू आर श्योर अबाउट दैट कि आपका ये गया, आपका हाथ से गया वो कब है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट कहाँ कहाँ यूज होता है। एक्शन इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम का एक्शन के लिए, जैसे द सन राइजेस हैबिचुअल एक्शन, फैक्ट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। इसमें एग्जांपल भी दिया गया है पेज नंबर 38 में, आपको एक शॉर्ट फॉर्म है, एक ही पेज में सारे फॉर्म का, टेंस फॉर्म का छोटा छोटा एग्जांपल के साथ आपको दे दिया गया है। आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या होता है, एक्शन टेकिंग प्लेस इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। आप जब बात कर रहे हो तब जो काम हो रहा है, जैसे मैं बोला कि आज हम टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेंस फॉर्म, अभी बोल रहा हूँ, अभी
कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ टेंस फॉर्म के साथ अगर, तो वी आर डिस्कसिंग, आप और मैं साथ मिलके डिस्कस कर रहे हैं अगर, तो वी आर डिस्कसिंग टेंस फॉर्म। तो एक्शंस टेकिंग प्लेस इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। तो सिंपल पास्ट कब लगाते हैं? एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट मोस्टली कनेक्टेड विद द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। जैसे कि आई पास्ड माई मेट्रिकुलेशन इन द ईयर 1990, मैं 90 में अपना मेट्रिकुलेशन पास किया, और 2 दिन बाद इस साल का मेट्रिकुलेशन रिजल्ट 29 को निकल रहा है, तो वो नहीं हुआ है, यहाँ पे आगे चल के होगा। हम 27 को बात कर रहे हैं, तो आगे चल के होगा, तो मेट्रिक रिजल्ट विल कम आउट ऑन 29। सेल विल जो फ्यूचर इंडिकेटिंग मॉडल होते हैं उसके साथ हम यूज करते हैं। तो ये होता है टेंस फॉर्म के साथ। इसके बाद जो आपको मैं जैसे कल से बता के रखा हूं कि आपको जो दिलचस्प पार्ट है, ये टेंस पार्ट तो हम बाद में भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रिपेयरिंग टू फेस एन इंटरव्यू, फेस ओवर हियर इज यूज्ड एज द वर्ब। फेस आपको सबका फेस है, मेरा फेस है, आपका भी फेस है। आई हैव ए लवली फेस, माय मदर हैज ए ब्यूटीफुल फेस, ऐसा हम यूज करते हैं। तो फेस यहाँ भाग टू फेस मतलब है कि सम्मुखीन हवा, सामना करेगा। टू सी, टू कम अक्रॉस, प्रिपेयरिंग टू फेस एन इंटरव्यू। ये जो थियोरेटिकल कंसेप्ट होता है, इसमें जाने से पहले हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। प्रथमे जो बुक में है, जैसे 2 एग्जाम्पल आपको दिया गया है इसमें। जैसे वो लोग रिव्यू दिए हैं, मतलब लिसनिंग फॉर कम्प्रीहेंशन में आपका 2 इंटरव्यू है। इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ पहले आपको। ये देखो, पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 ब्लॉक 2 में है। तो आई एम रीडिंग आउट द लाइंस फ्रॉम द जॉब सीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो आप जैसा या हम जैसा कोई आदमी जो एक्साइटेड है इंटरव्यू देने के लिए, वो बोलता है, देखो, आई एम सो एक्साइटेड, एक्चुअली रियली नर्वस टू। आई हैव sent my CV to New Age Corporation, which is the market leader in the animation industry. And just when I thought of giving up, here is the call letter. After the first excitement, well, it was a bad case of jilters. Then my friend David, he suggested getting a cheat sheet ready. Sounds interesting. Cheat sheet ready. So sounds interesting. It is. It has everything about me so that I don't forget. Everything I want them to know. You know, things like my skills and what I am like, and a checklist for documents I need to carry. I even noted down the clothes and accessories I am choosing. Oh yes, and my answers to the tricky questions. I am not going to learn them, but this kind of that helps me focus on important information, things I cannot afford to miss. क्योंकि वहाँ इंप्रेशन जमाना होता है, तो इंप्रेशन जमाने के लिए आप अगर फंबल करोगे, रह जाओगे, बीच बीच में अटक जाओगे, आपको आइडिया के लिए सोचना ज्यादा पड़ेगा, तो वो लोग तो वेट नहीं करेंगे ना। क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन it will be following, question after question they will be going on. In fact, David grilled me on my CV. I didn't know where there were so many items to ask about. So I am going over the details of my projects, college experiences, then everything I have put in there. I already have my transport ready. Reaching late would be suicidal. आप ये अंडरलाइन करके रखो कि किसी दिन इंटरव्यू में अगर जाना है तो आप क्या करोगे, आपको सही टाइम में पहुंचना। रीचिंग लेट would be suicidal, and I have spent the last few days looking over company details. I must know everything about New Age Corporation. That reminds me, I must ask them if they are venturing into film production, and that would be exciting. वो लोग अगर पूछेंगे तो हमारे बारे में आप और क्या जानना चाहते हो, तो we can ask them. What else about my preparation? Well, let us see. We must be able to use language effectively, not too formal if the recruiter is not. And what I mean is, we need to match the interviewer's level of formality. अगर जो सामने वाला बैठा है वो आपको आप कह के बुला रहा है या आप कह के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप भी उसको आप बोल के बोलना पड़ेगा। वही होता है फॉर्मेलिटीज का। वो अगर एक्सट्रीमली पोलाइट है, आपको भी एक्सट्रीमली पोलाइट होना पड़ेगा। वो अगर थोड़ा बहुत आपके साथ
थोड़ा फ्रेंडली या लाइटर वेन पे बात करना चाहते हैं तो यू कैन क्वाइट ऑल्सो फील एट होम एंड आंसर द क्वेश्चंस एज merrily as possible. So, and I am going to keep my answers simple, you know, no complicated explanations and jargons. Only where necessary, I need to come across an approachable, manageable, and skillful. It doesn't sound like getting ready for a show, but then being prepared could mean beating all odds and landing that dream job. आपको जो जो भी लगता है ये बोलने का, जो स्पीकर है वो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जा रही है तो वो एक्साइटेड है, उसका जो दोस्त है डेविड वो उसको बोले कि अरे इतना एक्साइटेड मत हो, एक पेपर निकल और पेपर में लिख ले कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो वो टाइम पे पहुंचना, वहाँ उनकी बात सुनना, अपना कामनेस बजाय रखना, इसमें जो जो पूछेंगे जैसे पूछेंगे ऐसे उसी हिसाब से आंसर लिखना या आंसर देना मतलब। और साथ में क्या करो, ये साथ में पॉइंट्स लिख के ले जाओ कि सीवी में आप क्या क्या मेन पॉइंट्स लिखे हो, आपको प्रोबेबली क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, और अगर ऐसे कोई और क्वेश्चंस आता है तो आपका आंसर क्या रहेगा। तो इसके साथ साथ में आई एम गुड एट, जैसे सेकेंड पेज नंबर 57 पे दो एग्जांपल है, दो इंटरव्यू का, डायरेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ है। मैं इसको पढ़ लेता हूँ, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट, इंटरव्यूअर के लिए आई आगे चल के लिखा जाएगा और सी लिखा जाएगा। मैं उसको रोल प्ले करके आपको बता दे रहा हूँ। आपको इंटरव्यूअर और इसके बाद फिर कैंडिडेट ऐसे नहीं बोलूंगा, तो आपको ऐसे गुड मॉर्निंग मिस्टर, गुड मॉर्निंग मिस वोंग, गुड मॉर्निंग कैंडिडेट, गुड मॉर्निंग मिस करके छोड़ दिया है, गुड मॉर्निंग मिस वोंग, गुड मॉर्निंग मिस वोंग, राइट, हाउ आर यू, fine, thank you, and you? Oh, fine. So you would like to join our team, I get that? Yes, I would. That's good. We would like to know something about you. Perhaps you could tell us about your education. Sure. Well, I left school in 1999 and went on to join a graduate program in media studies. And then I wanted to do a course in advertising, which my college didn't offer at specialization level, that is. So that would be Christ College, right? Yes, in Bangalore. Well, since they didn't have advertising, I went to New Age Media, and which was giving a diploma, a 2-year diploma in advertising. In fact, I finished the course this summer. That's interesting. Tell me, what did you enjoy most at school? Which course did you like the most? That would have to be foreign languages. Foreign languages? Yes, we had French and German. And are you fluent in those now? So I'm good at French. My German is a bit rusty. You see, I used a lot of French in my projects. Did you like those projects? I see quite a few in your CV. Oh yes, it was exciting. I loved working on the projects. For one you get a lot of free hand to try out new things, and then the brainstorming session and long hours at design and storyboarding. It's a fulfilling experience. I see you like a fast work pace. Tell me, do you think you get more creative ideas when you are working alone, or does a team help? You see the questions. Say, I think a team helps. A small one though, discussing and going over concepts is very useful. That's good to hear. Abruptly it ends herein. To give you one example, ये पॉजिटिव साइड का है, हम एक नेगेटिव साइड का भी देख देते हैं। तो पेज नंबर 58 में ये दिया है ब्लॉक 2 का। सो कैंडिडेट टू मिस्टर डेविड स्मिथ, डेविड, why don't you tell me something about yourself? The question you see, David, why don't you tell me something about yourself? Well, I think I'm serious and calm. Calm? Yes, I do. I don't panic in a crisis, and I enjoy working with all kinds of people, even those who, who are difficult to get along with. Okay, and where do you see yourself in, say, 5 years' time? You mean my long-term plans? Well, I see myself in media, and one day I would rather open my own company.
That is, what is it specially about New Age that attracts you? First of all, I want to start working, and I have finished my studies this year. You know, I want to get on. More importantly, I have heard a lot about New Age. It's a big company. I will have better scope. That's why. Fair enough. Before we move on, is there something you would like to know? Yeah, just one question. If I get the job, will I be working overseas as well in your branches or something? Our staff regularly does 6 months placement overseas. You are interested in working overseas, are you? Yes, it would be interesting. I would enjoy that. Well, can I? Well, I would like to know what do you consider your strength and weakness? As I mentioned, I don't panic in crisis, and my weakness, I think I get bored of repetitive work, sameness. Does that imply lack of commitment? Does that imply lack of commitment? यहाँ भी खत्म हो जा रहा है, तो आपको ये दिखाने के लिए कि कैसा है, दो इंटरव्यू को पढ़ने के बाद आपको क्या आइडियाज आया, तो क्या आइडियाज आया उसको भी आपके लिए लिख के दिया गया है। वो जो फर्स्ट वाला जो सुने हम मिस ओम का जो सुने, वो मिस ओम begins the interview in a positive note. On a positive note, she speaks without much hesitation, acknowledges interruptions. Her answer to the first question is well organized. She goes on to mention her interest in languages, also always a positive accomplishment. Further, she gives a very convincing reason for not being good at German. She obviously knows the working of her field and focuses on what would be considered tough situations to convey that she is compatible with them. नंबर 2 का डेविड का जो है इंटरव्यू आप सुने, उसमें देखो डेविड्स इंटरव्यू स्टार्ट्स ऑफ विद अ लॉट ऑफ हेजिटेशन ऑन ए वेरी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन. Further, he mentions equality, calmness, which he definitely does not show at the moment. He also does not provide any experience or illustrations to justify his claims. David doesn't volunteer information, even though he has been given lots of cues where he can sell his plus points, for example, future plans and why this company. He also doesn't seem to be sure of his choices. Indefiniteness is a definite drawback. His answer to the question on the weakness is badly worded and exposes a weakness that would lose him a possible job. It would have been better to say it with a positive focus. I like to do new things, to innovate, to think new things. So the point is, by giving you the details, I may tell you the meanings. आपको ये meanings के साथ मैं बता दे रहा हूँ अभी. जैसे कैंडिडेट और इंटरव्यू वाला गुड मॉर्निंग मिस करके कंप्लीट नहीं करते, वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग मिस, आई एम एट पेज 57 फॉर यू, सो गुड मॉर्निंग मिस बोल के छोड़ देते हैं, तभी वो कंप्लीट करता है. देखो कैसे पॉजिटिवली कंप्लीट करता है. कैंडिडेट बोलता है, बोलती है मतलब मिस वोंग गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मिस वोंग है, गुड मॉर्निंग सर, आप बोलो मिस वोंग, राइट, हाउ आर यू, अच्छा मिस वोंग आप कैसे हो, तो फाइन थैंक यू, एंड आप कैसे हैं सर. मतलब जो यू आर एंगेजिंग ना, कोई एक खाली बोलेगा और आप कुछ नहीं बोलोगे वो तो नहीं बनता है, तो इसलिए कोई और आपको पूछ रहा है कि हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, एंड यू मस्ट आस्क हिम हाउ आर यू आल्सो, एंड यू, oh fine, okay, is the expression over here. So you would like to join our team, I get that, means I suppose you are interested in us, you want to join our team, आप हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो. ये एक वाइटल क्वेश्चन है. लेकिन वो लड़की देखो मिस वोंग जो है, ये साइवुड, हाँ सर मैं तो उसी के लिए आया हूँ, दैट्स गुड, वी वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट यू. तो चलो अपने बारे में आप हमें कुछ बताइए. Perhaps you could tell us about your education. देखो ये वही क्वेश्चन वही आदमी पूछ रहा है क्वेश्चन, वी वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट यू, हम लोग आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे. Perhaps you should tell us about your education. चलो आपकी शिक्षा के बारे में बताइए, आप एजुकेशन क्या कहाँ किए थे, क्या क्या किए थे. तो see, by taking their question, Miss Wong is telling a lot about that thing, particular thing. Sure, I will. Well, I left school in 1999. 99 को मैं स्कूल छोड़ा एंड वेंट ऑन टू जॉइन ए ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मीडिया स्टडीज. जैसे मेरा इंटरेस्ट था एडवर्टाइजमेंट या मीडिया लाइन में जाने का, प्रिंट या विजुअल मीडिया में, सो आई मीडिया स्टडीज के लिए गया एंड देन आई वांटेड टू डू ए कोर्स इन एडवर्टाइजिंग.
तो एडवर्टाइजिंग को स्पेशल लेके स्पेशल पेपर लेके मैं पढ़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन मेरा जो कॉलेज था वो कॉलेज नहीं देता है, उसमें एडवर्टाइजिंग का कोर्स नहीं होता है, तो व्हिच माय कॉलेज डिड नॉट ऑफर एट स्पेशलाइजेशन लेवल, दैट इज तो ऑनर्स लेके स्पेशलाइजेशन लेके मैं नहीं कर पाता हूँ हाँ, तो इसलिए मैं ये कॉलेज छोड़ दिया। तो दैट वुड बी कास्ट कॉलेज राइट, तो वहाँ लिखा होगा वो जो डॉक्यूमेंट्स दिया है उसमें, सो दैट इंटरव्यूअर इज आस्किंग, इंटरव्यूअर पूछता है देखो दैट वुड बी कास्ट कॉलेज राइट, वो क्राइस्ट कॉलेज है ठीक ना, तो ये बोलता है यस इन बैंगलोर, वेल सिंस they didn't have advertising, I went to New Age Media which was giving a diploma, a 2-year diploma in advertising, in fact I finished the course this summer, इस साल भी इसी साल ही मैं खत्म किया हूँ, 2 साल का डिप्लोमा किया हूँ मीडिया में एडवर्टाइजिंग के स्पेशलाइजेशन के तौर पर। एडवर्टाइजमेंट जैसे टीवी पे सब जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो एक कोर्स होता है, जैसे आप एडवर्टाइजिंग में कैसे लिखोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, जैसे आपका देश का धड़कन, टाटा नमक, धक धक दो, हीरो होंडा का एडवर्टाइजमेंट आता था, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये जो लाइन सब लिखा जाता है जो एडवर्टाइजमेंट साथ में देखते हो। और आपको तो बिगेस्ट एग्जांपल तो सेंसेशन आप देखे, वो एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा और अमिताभ बच्चन को पूछ रहा था आप मुझे उल्लू समझते हैं क्या, कोई सब ड्रिंक का बोतल का एडवर्टाइजमेंट था, और बोरोलिन का, सो नवरत्न का, ये सब जो एडवर्टाइजमेंट आता है ये कोर्स होता है, इनको कोर्स करके पढ़ना पड़ता है कि कैसे प्रेजेंट करने से लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। कोई बिग डील, इतने बड़े बड़े आदमी को हम क्यों लेते हैं, क्योंकि वो लोग अगर बोल देंगे तो लोगों के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा, वो लोग खरीदने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए सारे आप देखोगे कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्रिकेट आजकल का सेंसेशन है यंग एज का, तो बहुत सारा जो गाड़ी का या जो मोबाइल फोन का सब आता है वो सब स्पोर्ट्स पर्सनालिटी लोग करते हैं, और जो घरेलू कामकाज का चीज होता है उसमें फिल्म वाले, डेली सोप ओपेरे वाले एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो उनका काम है वो जो डिश वॉश बार सब खरीदने वाले होते हैं वो मम्मी लोग ज्यादा होते हैं, जो वो लोग डेली सोप ओपेरा देखते हैं, तो उसी में कोई साकी तनवार को आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट कर रही है, कोई जो ब्यूटी आइटम्स जैसे सोप हुआ, क्रीम हुआ, ये सब हीरोइन लोग ज्यादा करते हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट का कोर्स होता है। तो वो एडवर्टाइजिंग में वो एक साथ किए, तो इसमें क्या था देखो, स्कूल के टाइम में आपका व्हाट डिड यू एंजॉय, सो दैट इज इंटरेस्टिंग, टेल मी व्हाट डिड यू एंजॉय मोस्ट एट स्कूल, आप स्कूल में कौन से सब्जेक्ट में माहिर थे, व्हाट यू लाइक्ड, व्हाट डिड यू लाइक देयर, व्हाट कोर्स डिड यू लाइक द मोस्ट, आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता था स्कूल में, तो उसका आंसर वो देता है दैट वुड हैव टू बी फॉरेन लैंग्वेजेस, इंग्लिश, दैट इज टू से फॉरेन लैंग्वेजेस। आप हमारे लिए इंग्लिश बोलेंगे, वो बोलता है कि मेरे लिए फॉरेन लैंग्वेजेस ज्यादा था, क्योंकि हमारे स्कूल में यस वी हैड फ्रेंच एंड जर्मन, हमारे स्कूल में फ्रेंच एंड जर्मन दोनों सिखाया जाता था। एंड आर यू फ्लुएंट इन दोज नाउ, आपको अभी भी फ्रेंच और जर्मन आता है, तो वो बोलता है फ्रेंच तो मुझे आता है, आई एम गुड एट फ्रेंच, माई जर्मन is a bit rusty, means I'm not very good at German. You see, I used a lot of French in my projects. मेरा प्रोजेक्ट जो आपके पास है, जो प्रोफाइल में दिया हूँ, उसी में आप देखो मैं बहुत सारे फ्रेंच वर्ड में यूज किया हूँ। तो डिड यू लाइक दोज प्रोजेक्ट्स, अच्छा आपको ये प्रोजेक्ट सब अच्छा लगता है आपको करने में, आई सी क्वाइट ए फ्यू इन योर सीवी, आप तो सीवी में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हो जैसे, वो यस इट वाज एक्साइटिंग, एक्साइटिंग क्यों, वो देखो एक बोल देता है एक्साइटिंग क्यों होता है, उसका एग्जांपल भी दिया है वो कि आई लव वर्किंग इन द प्रोजेक्ट्स, फॉर वन यू गेट ए लॉट ऑफ फ्री हैंड टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स, एंड देन द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, द लॉन्ग आवर्स ऑफ डिजाइनिंग, स्टोरी बोर्डिंग, इट्स फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। आपको वो चूज करना पड़ेगा कि कैसे करने से आप अच्छे से बोल पाओ, मतलब आपको कुछ बोलना होता है, लेकिन जैसे होता है कि आपको वो थॉट देना पड़ेगा। सब अभी का एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, टीवी पे आप देख रहे होंगे कि गुजरात के बारे में था वो, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब निकल रहे हैं 2-3 बार अलग अलग सा ड्रेस में, एक सोमनाथ टेम्पल के पास है, एक जंगल, वो एक शेर के पास खड़े हैं, शेर अंदर है जंगल में, वो पास में है, और साथ में वो टैग लाइन क्या आता है उनके मुंह से, आइए उस दिन तो बिताइए ना गुजरात में। तो ये सफिशिएंट होता है ये लाइन, जैसे वो ही इज इनवाइटिंग द फॉरेनर्स, द टूरिस्ट्स टू कम एंड स्पेंड सम टाइम। और आपको ये जान के
हैरानी होगा, आप यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट जिस साल अमिताभ बच्चन ने गुजरात का टूरिज्म डिपार्टमेंट से ये एडवर्टाइजमेंट किए, उसी साल गुजरात को खाली 1 लाख फॉरेन टूरिस्ट हैव कम। 1 लाख से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए थे गुजरात देखने के लिए। That suggests how much popular our Amitabh Bachchan is, and again the force that advertisement could bring। वो एडवर्टाइजमेंट क्या आ सकता है? बोरोप्लस का एडवर्टाइजमेंट जब अमिताभ बच्चन साहब कर रहे थे, ऐसे सुनने को आया है कि 1 लाख से ज्यादा ट्यूब एक ही महीने में पिज्जा सेल हो गया। तो कैंडिडेट 2, वही सेम कंसेप्ट में कैंडिडेट 2 मिस्टर डेविड स्मिथ, वो लड़की का आप सुने, अभी डेविड स्मिथ का है, इसमें यू सी व्हाट डेविड व्हाई डोंट यू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसी दो तरीका अलग होता है। देखो तरीका फर्स्ट में वो पूछते हैं, कोई इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ओके फाइन यू वुड लाइक टू जॉइन अस, यू सी वी वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट यू, हम आपके बारे में कुछ जानना पसंद करेंगे। ये पूछ रहे हैं कि डेविड व्हाई डोंट यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्यों आप मुझे अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताओगे। आप अगर इसको ट्रांसलेट ऐसे करोगे तो उसका मतलब अलग सा हो जाएगा। ये तरीका होता है अपने आप के बारे में पूछने के लिए या बताने के लिए। यू सी जो डेविड है, वो डेविड बोलता है वेल आई यस आई थिंक आई एम सीरियस एंड काम, इसमें जान नहीं है। वो ऐसे जो बोल रहा है उसमें जान नहीं है। काम यस आई डोंट पैनिक एट क्राइसिस, वो बोलता है कि मैं पैनिक नहीं होता हूँ क्राइसिस के टाइम में, मैं पैनिक नहीं होता हूँ। लेकिन पैनिक होता है इसलिए बहुत सारे, आप अगर बुक्स निकाल के देखोगे तो आप डाउनलोड करके आज बुक को अगर देखोगे, उसमें बहुत सारे डट के साथ वो बात किया है, मतलब अटक के बात किया है। तो इसको ऐसे करना है तो मतलब है कि इंटरव्यू में अपने आप को काम एंड क्वाइट रखना, और साथ में जो क्वेश्चंस होता है उसको बताना। मतलब जैसे मतलब जो क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चन तो आएगा इंटरव्यू के लिए, क्वेश्चन तो आएगा इंटरव्यू के लिए, क्वेश्चंस आएगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप का जो धीरज पॉइंट है, अपने आप को संभलते हुए वहां रखना पड़ेगा। जैसे तो फ्रॉम द रिक्रूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन हम पढ़ेंगे, एक कंसल्टेंट कैसे बताता है कि इंटरव्यू के लिए जब जाओगे तो जॉब सीकर पॉइंट ऑफ व्यू में, कंग्रेचुलेशंस योर कवर लेटर एंड resume have made a good impression and the employer has called you in for an interview। मानो आपका जो लेटर लिख के आप दिए थे या एप्लीकेशन डाले थे वो सिलेक्ट हो गया, आपको अभी इंटरव्यू के लिए तैयार होना पड़ेगा। नाउ इट इज टाइम टू मेक श्योर दैट यू आल्सो हैव द इंटरव्यू प्लान्ड आउट एज फार एज पॉसिबल। तो आपको इंटरव्यू के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप ऐसे? जैसे देखते हैं, मोस्ट पीपल वांट टू नो हाउ मच इंग्लिश दे नीड। Well, here is the answer. A good amount of effective communication skills in English might actually clinch the deal for you। ये पहला बात आप याद रखो कि आपका इंग्लिश जो है टफ नहीं होना चाहिए, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यूज हाई साउंडिंग इंग्लिश वर्ड्स, बहुत बड़ा बड़ा डिफिकल्ट वर्ड के साथ इंग्लिश में बात करो। छोटा सेंटेंस बोलो, डायरेक्ट सेंटेंस बोलो और करेक्ट सेंटेंस बोलो, ये आप कर सकते हो। गुड अमाउंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, आप सुन के उनको कन्विंस करने के लिए, जैसे यू कैन क्वाइट इजीली डू दैट। इट डजंट ऑलवेज मीन दैट आप बुक से पढ़ के आंसर्स याद करके जाओगे और वहां अगर वही क्वेश्चन नहीं पूछे तो कैसे करोगे। तो दैट इज व्हाई यू डिड द फर्स्ट एवर थिंग सो फार एज योर लैंग्वेज इज कंसर्न्ड, यू मस्ट हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। वो लोग जो पूछेंगे उसको अपने हिसाब से आंसर देना, उनको इंप्रेस करने के लिए आंसर देना, अपना नॉलेज नहीं दिखाना। अपना नॉलेज दिखाने का बहुत जगह मिलेगा आगे, तो आपको ऐसे करना है वहां फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। जैसे आप जो वो लोग जो पूछ रहे हैं उसको सुन के, जैसे मैं 2 एग्जांपल दिया कि वो लोग पूछेंगे कि चलिए टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये डायरेक्ट होता है, शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में हमें कुछ बताइए। लेकिन 2 अदर तरीके में जो एग्जांपल हम पढ़ के आए अभी, उसमें 2 अलग तरीके से वो दिया गया है। एक बोलता है कि वी वुड लाइक टू लिसन समथिंग अबाउट यू, आप माने हम लोग आपके मुंह से आपके बारे में कुछ सुनना चाहेंगे। और दूसरा पूछ रहे हैं डेविड व्हाई डोंट यू टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ,
ये दो तरीका होता है क्या पूछने के लिए, वही पहला वाला जो डायरेक्ट पूछा था मैं, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आपको वो समझ के कि ये जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये समझ के अपने हिसाब से बताना पड़ेगा, तो तब जाके हम क्लिक कर पाएंगे। इन एन इंटरव्यू यू मे हैव as little as 10 minutes to give an impactful answer to the one main question from each panel member। तो इंटरव्यू में एक ही पैनल, डायरेक्ट 1-to-1 इंटरव्यू नहीं होता है कभी। एक आदमी बैठा होगा जैसे मैं बैठा हूं और सामने आप लोग रहेंगे, 1-to-1 एक आदमी अरे एक आदमी का इंटरव्यू लेगा, ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू में पैनल होते हैं, more than one people will be sitting, 4, 5, 6, 7 as many as 11-12 मेंबर्स भी कभी कभी हो जाते हैं। तो 11-12 मेंबर्स जब हो जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी, तो आपको सबका क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन, सब एक एक क्वेश्चन पूछने के लिए कोशिश करेंगे, और एक क्वेश्चन का सही आंसर या प्रभावशाली ढंग में आंसर देने के लिए, फोर्सफुली आंसर देने के लिए आपको 10 मिनट्स मिलेगा। जैसे मान लो आपको मेन 10 ठो मेन सेंटेंस, 10 ठो मेन क्वेश्चन मिलता है 10 आदमियों से, मतलब कि आपका इंटरव्यू मोर देन 1 आवर चलेगा, आपको टाइम मिलेगा। आप अगर ऐसे बोल रहे हो, अच्छे से आंसर दे रहे हो, काम एंड क्वाइटनेस के साथ, जैसे उनको चाहिए ऐसे अगर आंसर देते रहते हो, तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस भी मिलेगा। ज्यादा क्वेश्चन मिलने का तरीका या मतलब ये होता है कि आप कितने अच्छे अपने आप को संभल पाते हो अप टू एंड। तो बहुत सारे लोगों, बच्चे लोग आजकल जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो इम्पेशेंट होते हैं, धीरज उनके पास नहीं होता है, पेशेंटलेस हो जाते हैं, कितने टाइम का चलेगा, उनका जो सब्र जो है खत्म हो जाता है। जैसे तो 2-3 क्वेश्चन सही से बोल देते हैं, उसके बाद they show their unconscious body language makes them totally rejected from the interview because they can't sit for 1 hour or so। 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, जैसे क्लास होता है 2 घंटे के लिए का क्लास होता है, 2 घंटे के लिए बैठने के लिए तैयार होकर आना पड़ेगा। तो बीच बीच में हम क्या पढ़ा रहे हैं, उससे तो बुक नहीं था, ऐसा नहीं है, तो बोरिंगनेस भी कभी कभी आ जाता है, हम सुनने में दिलचस्पी नहीं रख पाते हैं, धीरज नहीं रख पाते हैं। माई पॉइंट इज टू टेल यू दैट योर पेशेंस लेवल इज गेटिंग लोड डाउन। आप लोगों का पेशेंस लेवल जितना कम होता जाएगा, वो सामने वाला जो है वो इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं पाएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सो आप अगर अच्छे से आंसर दे रहे हो, जैसे मिस वोंग दे रहे हैं, तो इसलिए उनको क्वेश्चन थोड़ा इजी रहा, और डेविड का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट रहा क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट दिखा नहीं पा रहा है। तो व्हाट द पैनल इज टेस्टिंग इज ऑब्वियस, वो लोग जो पूछेंगे, सो डू दे बिलीव दैट यू कैन डू द जॉब वेल। तो वो सोचना चाहते हैं, इंटरव्यू का मेन पर्पस ये होता है, डू दे बिलीव यू कैन डू द जॉब वेल। वो ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि आप उन लोगों के कंपनी के लिए, ये जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए आप डाले हो, अपना इंटरव्यू दिए हो, रिटन टेस्ट क्वालिफाई किए हो, तो आप फाइनली उसमें सूट होते हो या नहीं होते हो। जैसे पिछले दिन मैं जब बात कर रहा था, मैं बोलता था कि किसी कलेक्टर के लिए एक क्वेश्चन ऐसा है, बिहेव लाइक ए कलेक्टर। आप कलेक्टर जैसे बिहेव करके हमको दिखाओ अभी। तो जो कलेक्टर नहीं बना है उसे पहले कैसे बनाएगा, तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन ऑफिसर लोग जो होते हैं, सामने टेबल में कॉलबेल होता है उनका, और कॉलबेल को खाली दबाना होता है, कोई आदमी आएगा, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता है। दैट इज व्हाट वी कॉल बिहेव लाइक ए कलेक्टर। इतना सिंपल सा बात है। जो वो पास छोड़ा, फिर जाके कोचिंग लिया, कोचिंग के बाद आया, और फिर दूसरे चांस के लिए दिया और क्वालिफाई किया, IAS बना। अभी ये जो है मेरा एक्सपीरियंस, जो मैं कल शेयर किया था आप लोगों के साथ, कि रिटायर्ड हो चुके हैं वो IAS अभी हैं, बाकी रिटायर्ड कर चुके हैं, अभी कौन से भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है नहीं वो। सो यू ऑल्सो नीड टू बी एबल टू टर्न योर नॉट सो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स इनटू समथिंग मोर फ्लैटरिंग। आपका कुछ क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन उसको आप ऐसे बोलो कि वो लोग इंप्रेस हो जाए। जैसे वो मिस वोंग दिए कि जर्मन उनको इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको बोलने से पहले वो बोले कि माई जर्मन इज थोड़ा रस्टी, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन फ्रेंच। जैसे मैं जो प्रोजेक्ट दिया हूँ, उसमें देखिए आप, मैं बहुत सारे फ्रेंच वर्ड यूज किया हूँ। आप उनको कंपेल कर दिए कि वो भूल जाए क्या भूल जाए, वो भूल जाए कि जर्मन आपको नहीं आता है। वो याद रखें कि फ्रेंच में आप माहिर हो, फ्रेंच को आप यूज किए हो, फ्रेंच के साथ आप कुछ एग्जाम्पल्स उनको लिख के दिए। तो योर सोच, SWOT को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। वो 4 क्या है? SWOT स्टैंड्स फॉर 4 वर्ड्स: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ आपका क्वालिटी होता है, वीकनेस आप किस पे इतना
खास नहीं हो, और साथ में वीकनेस, मतलब वीकनेस तो गया जिसमें आप खास नहीं हो। अपॉर्चुनिटीज आपके पास, आपके रास्ते कैसे, पहले से एक्सपीरियंस कुछ आया था नहीं आया था, कुछ काम आपको करने को सुযোग कभी चांसेस मिला है नहीं मिला है। और थ्रेड्स, थ्रेड्स मतलब कहाँ आप चुप हो जाते हो, किस परिस्थिति में आप अपने आप को डरते हुए महसूस करते हो। थ्रेड्स क्या है, आप किस माहौल पे आप काम नहीं कर पाते हो और किस माहौल पे आप अच्छे से काम कर पाओगे। डू दे लाइक द लुक ऑफ यू। सेकेंड पॉइंट इज डू दे लाइक द लुक ऑफ यू। जैसे मैं बोला कि इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं मोस्ट फॉर्मल ड्रेस में हमें जाना पड़ेगा। इट्स ट्रू टू से इट्स कॉल्ड एन इंटरव्यू बिकॉज दे कॉल इंटरव्यू, इंटरव्यू यू, आपको देखने के लिए वो लोग मैंने बुलाए हैं। तो और कोर्स दिस, of course this has more to do with your attitude than with your haircut or the color of your tie or blouse, or you could seriously harm your chances with something as trivial as not smiling at all during the interview। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में पूरा ग्रेव काम एंड क्वाइट दिखाने के लिए अपने आप कभी हंसोगे नहीं, वो लोग जोक भी करेंगे तो भी नहीं हंसोगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को you feel that you are as if you are talking with one of your known persons, senior person but known person। कोई हमसे बड़े हैं लेकिन घर में आना जाना होता है, पापा का दोस्त हैं जैसे हैं, लेकिन उनके साथ हम जब बात करते हैं इतना डरावना हमें डर नहीं लगता है। वही वही क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, कैसे पढ़ाई कैसे चल रहा है, आगे चल के क्या करोगे, अच्छा तुम लोग के स्कूल में क्या क्या दिया जाता है, कुछ जो कंपनीज आते हैं नहीं आते हैं, या आगे चल के कैसे काम करोगे, तुम गवर्नमेंट सर्वेंट बनोगे या बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, रेलवे में जाओगे, IAS के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हो, आप इंग्लिश में इतने कम क्यों लाते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वो भी पूछते हैं। लेकिन वहां जब आंसर देते हैं हम हिचकिचाते नहीं। लेकिन इंटरव्यू में कोई अननोन पर्सन जब वही क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका जैसे दिखाई पड़ता है आप मैट्रिक में फर्स्ट क्लास मिला था आपको, +2 में आप थर्ड क्लास में आ गए, कैसे आ गए थर्ड क्लास में, तो आपको ये लगता है कि क्या बोले, अभी सच बोले या झूठ। सच बोले झूठ मतलब कि मैं बाहर जाके हॉस्टल में रह के पढ़ा, मुझे देखने के लिए कोई नहीं रहा, और मैट्रिक में मेरे पिताजी जो थे जिस स्कूल के टीचर थे उसी स्कूल में मैं पढ़ता था, तो सारे टीचर का मेरे ऊपर फोकस था, मुझे वो लोग सब पूछ रहे थे तो गाइडेंस ज़्यादा था। और बाहर में जब जाके पढ़ा तो दोस्तों के साथ में ज़्यादा मस्ती हो गया और पढ़ाई कम हो गया, तो इसलिए मार्क्स घट गया। यू कैन टेल लाइक दैट, आप ये बोल नहीं पाओगे। तो इस तरीके से आपको तरीके से बोलना पड़ेगा, तरीके से बोलना पड़ेगा कि +2 का जो कोर्स है, मैं साइंस में था सर, वो साइंस का जो कोर्स है या जो कोर्स में +2 में लिया, इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू कोप अप विद। इट वाज नॉट सो इजी लाइक दैट ऑफ आवर मैट्रिकुलेशन कोर्स और मैट्रिकुलेशन वे ऑफ टीचिंग was lacking in। I lacked in the personal care and attention of the teachers over there, and could not cope with for the first few months, and जो lacking in रह गया उसी हिसाब से मैं I went down and could not make it up। And in our time the exam was very tough, question was very tough sir, and the highest scorer of our college also got first class, but with only 60 to 65% of marks या 70% of marks। you can show that कि ये टाइम में क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट था और आपको प्रिपरेशन का सही दिशा नहीं मिला, गाइडेंस नहीं मिला, और मिलता तो आप थोड़ा अच्छा कर पाते। और बाय दैट टाइम इफ अगर आपको BSc में फर्स्ट क्लास मिला है, आप इसको पॉजिटिव में दिखा सकते हो। पॉजिटिव में दिखा सकते हो बोलने से कैसे दिखा सकते हो, पॉजिटिव में आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि आप देखिए +2 में थोड़े चूक हो जाने के बाद आई गॉट द आइडियाज, एंड इन माई +3 आई हैव स्कोर्ड मोर देन 80% ऑफ मार्क्स। सो आपको ये अपना जो शॉर्टकमिंग था, जो छूट था, जो नकारात्मक दिख था, तो उसको हम पॉजिटिव साइड में चेंज करते हैं। तो ऐसे आपको ये करना पड़ेगा, इसको वहीं पे देख के यू कुड सीरियसली हार्म योर चांसेस बाय समथिंग ट्रिवियल एट नॉट स्माइलिंग एट। आप इंटरव्यू में अपने आप को ग्रेव बना के पूरा 1 घंटे का अगर इंटरव्यू है, एक बार भी नहीं हंसोगे, इवन जोक सुनने के बाद भी नहीं हंसोगे, तो चांसेस है कि आपका पता कट जाएगा, वहां दब नहीं मिलेगा। जैसे दिस विल बी इंटरप्रेटेड एज आइदर यू आर नॉट एबल टू कोप अंडर प्रेशर। वो लोग आप कभी भी नहीं हंसोगे 1 घंटे तक, तो उनको लगेगा कि आप ज्यादा प्रेशर में हो। तो प्रेशर में होने के कारण क्या होता है, आपको टारगेट तो हर बार मिलेगा। आप कंपनी लेवल में अगर जॉब करना जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो हर जगह प्रेशर होता है। तो प्रेशर में काम करने का मतलब होता है आप नेचुरली, आपका जो नेचुरलनेस है, नेचुरल क्वालिटीज है,
हंसना, उठना बैठना, घुलना मिलना, ऐसे आप अगर इसको भूल जाओगे तो काम कैसे करोगे? अंडर प्रेशर में कुछ काम नहीं होता है सही से, अच्छे से हम कर नहीं पाते हैं काम। वो भी साइकोलॉजिकली दे आर ऑल्सो वाचिंग ऑल दीज थिंग्स। So the point is, what you have to do, you are a happy person and you are not under pressure. आप अगर थोड़ा बहुत ऐसे अपने आप को जैसे फील एट होम, जैसे आपको हैबिचुएटेड हो, आपको डर नहीं लगता है। डर तो सबको लगता है इंटरव्यू में, ऐसा नहीं है कि किसी को डर नहीं लगेगा, डर सबको लगता है। लेकिन वही माउंटेन ड्यू का वो एडवर्टाइजमेंट जैसे मैं बोला अभी, डर के आगे जीत है। आप उसको डर को छिपाते हुए आप बैठना हुआ और आराम से, अगर आपका जो टाइम लिमिट है 1 घंटे का या 45 मिनट का या आधे घंटे का भी, तो आप अगर वहीं पे अपने आप को काम एंड क्वाइट रख के थोड़ा बहुत मैनेज करके आंसर दे दिए, मीन्स द डे इज योर्स, वो हो गया एक बार तो आप क्लिक कर गए। So the point is, do you show any strong contradictions for either A or B? मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आकर के आपको जब अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये जो 4 चीज है आपको हर बार दिमाग में रखना पड़ेगा कि मैं इस एरिया पे स्ट्रांग हूँ। आप अगर बोलने में माहिर हो, आप बोल के किसी को कन्विंस कर सकते हो, तो आप बोलने के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे। तो जब प्रोजेक्ट के लिए बोलेंगे कि आप क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं, ऐसे किए, आप ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं किए तो प्रोजेक्ट से आप सिक्योर करो वो पॉइंट को कि सर आई वाज इन ऑल माय टीम्स बट इन मोस्ट केसेस आई वाज नॉट द टीम लीडर। सो ऐसे मतलब कि जैसे करके जो जिसमें हमारे जो खासियत है उसको फाइंड आउट करो, बार बार घुमा फिरा के आप अपने तरफ से मोड़ के आओ कि जैसे आपका जो स्ट्रेंथ है उसी के क्वेश्चन आए और आप उसी में आंसर दे सकते। तो जिस जिस बात में जिस जिस पॉइंट पे आप स्ट्रांगली बोल सकते हो उसी पॉइंट में आ जाना चाहिए। और साथ में ये याद रखना, जैसे मैं रिपीटेडली पिछले 2 दिन से बोलता आ रहा हूँ कि हैबिट अभी से बनाना शुरू कीजिए कि छोटा छोटा इंग्लिश में सेंटेंस बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हर बार चांस मिलेगा कि आप सुन लेते हैं, काउंसलर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत उर्दू भी बोल देते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी भी बोल देते हैं और हो जाएगा। लेकिन ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि एग्जाम में आप हिंदी नहीं लिख पाओगे, आपको इंग्लिश ही लिखना पड़ेगा। तो छोटा छोटा इंग्लिश अभी आप फैमिली के मेंबर के साथ, कोई दोस्त है, किसी को आप पहचानते हो या नहीं तो जूनियर लोगों के साथ भी आप छोटा छोटा इंग्लिश सेंटेंस बोलना सीखिए। तब जाके क्या करेंगे, आपका इंग्लिश पॉलिश हो जाएगा। और टेंस के बारे में 100 बार आपको थियोरेटिकली टेंस पढ़ा लेंगे, नोट्स बना के आइडियाज देके या नहीं तो इसमें शो करके आपको भेज दिया जाएगा, अगर तब भी आप टेंस में माहिर नहीं बन पाओगे। ये ओनली ऐसे करना पड़ेगा, आपको वो सेंटेंस यूज करना पड़ेगा, वो टेंस को। आप सेंटेंस जब बोलेंगे जितने ज्यादा बार, 100 बार अगर सिंपल प्रेजेंट लगा के आप 100 सेंटेंस आप यूज कर लेते हो, तो सिंपल सेंटेंस का यूज के बारे में आपको कभी फिर बुक्स लौटाना नहीं पड़ेगा कि पेज में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, आपको तो पता हो जाएगा। 100 बार 100 सेंटेंस आप सेंटेंस सिंपल टेंस फॉर्म में यूज करके, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में यूज करके यूज किए हैं। टेंस ऐसा चीज होता है कि जिसको जैसे ही आप यूज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो चांसेस है भूल जाने का मतलब होता है आप भूल नहीं जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा। तो इंटरव्यू में अपने आप का जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के ऊपर जाना। तो बहुत सारे बार ऐसा होता है कि कुछ वीकनेसेस हमारा है, तो वीकनेस के साथ हम नहीं जाएंगे। थोड़ा लेट हो गए तो उसको लेट तो कभी नहीं जाना, इंटरव्यू के लिए लेट में कभी नहीं जाना। और साथ में ये होता है कि आपका जो ड्रेस सेंस रहेगा, फर्स्ट एंड इम्प्रेशन, तो ये पूरा फॉर्मल होना चाहिए। मतलब अच्छे से ड्रेस, जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा आपको देख के पता चलेगा। आप कहीं तो एडवर्टाइजमेंट विंग, जैसे हम एग्जाम्पल मतलब, तो एडवर्टाइजमेंट विंग या मीडिया सेक्शन में काम करने के लिए जाते हैं तो हेयर स्टाइल कोई भी चल सकता है, लेकिन इन ऑल द मोस्ट केसेस आपको आपका फॉर्मल हेयर स्टाइल जो आपको सूट करता है उसी टाइप का एक फॉर्मल हेयर स्टाइल होना चाहिए। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि आपको चल के कैसे करके वो लोग क्या करेंगे ना, वो लोग थोड़ा इंप्रेस हो जाए, वो आपको पॉजिटिवली आपको देख के थोड़ा इंप्रेस हुए। जैसे मैं बोला कि इनटू व्यू को देखने के लिए कि आपका सुइटेबिलिटी क्या है वो जॉब के लिए। और दूसरा है वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछते हैं, आप कीप इट इन माइंड दैट दे आस्क very typical odd questions to test your how you cope with difficult situations। जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ कि
जानी करी कि सेमाने किछि ऑड क्वेश्चंस पचारिबे आपण मानकु जेतोले इंटरव्यू जेतोले दबाकू हबो जेतोले सेमाने जानिबा को चाहे गोटे ऑड सिचुएशन रे पिला निजको केमति बाहर करूछ बट इज रेडी विथ नॉलेज ए बुक से तो समस्त पढ़ देबे रिटन टेस्ट समस्त क्वालिफाई करथिबे किंतु आमे जेमति प्रथम रु कहि जे सीवी जेमति हॉल टिकट भलिया हबो सीवी टा इम्पैक्टफुल सीवी हबो देन सीवी पाई सारला पर जो शॉर्ट लिस्ट के इंटरव्यू पे डका हला से इंटरव्यू रे जेतबेले तमे बसिलो इंटरव्यू रे केमति बसुचो केमति कथा होचो केते डरुचो भितरे केते नर्वसनेस अछि सो हिलना मन मतलब जदी कंठ कथा कहला बेले हम कंठ थरी जाउची आमे गल्पिंग डाउन बहुत बार सेपो ढोकी करी कथा करे हम चेष्टा करूचू डरी जाउचू स्केचिंग ऑफ हेड याडे सियाडे देखुचू बा के नर्वस फील करूचू गोड़ हाथ होउची मुंडो कुंडई होउचू ए सब जिंस जोडा को बेसिकली कोन करिवे समान को फील करिवो जे यू आर फीलिंग नर्वस ये नर्वसनेस रो प्रॉब्लम होची एटा जे आपण माने प्रेशर रे काम कर परिबे नै तो जॉब माने गुटी टाइप रो प्रेशर अछि जॉब जे कोन प्रकार जॉब को हमें जीवा से जॉब रो निजस्व किछि प्रेशर अछि से प्रेशर रे किए केते भलो भाबरे काम करि परुची सेटा को समाने देखियो चाहे और सेति पई इंटरव्यू हबो तारो सक्सीडिंग जो यूनिट्स अछि सक्सीडिंग यूनिट्स बा सक्सीडिंग ब्लॉक्स रे हमें मॉडर्न टेक्निक्स देखिबा जो टेलीफोन रे भी इंटरव्यू होउची टेलीफोन इंटरव्यू हेले एके सुविधा सामना रे जो लोक अछि ताको तमे देखिबो ना तेणु से जहाँ पचारे तार इंप्रेशन देखा कि दरकार नहीं क्वेश्चन शुणा गला आंसर में दे दे पारबा तथापि गोटे टिके भय अछि हम फोन टे उठैले धन्य जो सार हमको फोन कले हम टीचर्स माने फोन टे कले आउ केमती कोन करूछ कहले टिके नहीं सर एठी अछि वी कैंट से दैट हमें खाउछु फिर भी हाथुर बेले बेले चमच चमच खसी पडुची सर जानि तो के पथरे कोन कोन धरिथिलो खसी पडला कि नहीं सर किछ नहीं से बिलेइटा डेई गला यू आर टेलिंग द ट्रूथ बिकॉज़ आप उनको देखु ना ना तो से सार भी देखु ना तो कहि दे परबा जे बिलेइटा डेई पडला एमते हे गला किंतु इंटरव्यू रे सामने रे से कथा करि हबो तो सामने रे से देखि परुछन सेठी हम जो गल्पिंग जेमति कहली ये जो पूरा गल्प डाउन माने किछि समय पई 1-2 सेकंड जो अछि से सेकंड को हमें पूरा फुली देता माने निजु आउ चेपो ढोकी करी तापर डरे आरंभ कले बा हमें नहीं सर एमती मु तो जानिनी और जैसे जेमति कहबानी हमें आई डोंट नो हमको एमती पढ़ाई नहीं हमें एमती आंसर जानिनु एमती पचरा जाय बोली हबनी हम तो प्रिपेयर हेकरी आसिनु बा आगुरु एक्सपीरियंस नहीं समस्त को सब काम फर्स्ट टाइम करियो को पड़े जी भी करछे से भी आगुरु कर नथिबो होता तो गोटे फर्स्ट टाइम करबा भले कांसेप्ट नहीं हमें सब काम को फर्स्ट टाइम कला भले फर्स्ट टाइम करुवा काम पई हमें आउटी के बेसी सीरियस हबा जे केमती निजको सेठी प्रेजेंट करबार अछि एटा जेमते हमें प्रथम रु कहि प्रथम जे निजको सेल करबार अछि ये द एज ऑफ एडवर्टाइजमेंट रो एज बहुत सारे जिंस रो एडवर्टाइजमेंट जेमती होउची तो जॉब इंटरव्यूज हला टू शो देम दैट यू आर सुटेबल फॉर द जॉब बाकी लोगों को छाड़ी करी माने बाकी लोक मन को छाड़ी करी तुमको बाछिबे तार कारण हला तुम ए सब पॉइंट रे स्ट्रांग अछ तो दैट इज व्हाट वी कैन शो देम तो नाउ लास्ट पार्ट में आकर के द बुक से जो दिया गया है पेज 45 सो 10 मस्ट डूज आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे योर सोशियबिलिटी विल ऑलमोस्ट सर्टेनली बी टेस्टेड एवरीवन यू एनकाउंटर नीड्स टू बी इम्प्रेस्ड इंटरव्यू रे गला बेले को जो पियोन तुमको गेट खोली करी गोटे क्लर्क अछि ता पकरे हमें जाई करी आको डॉक्यूमेंट्स दबा निजर ना गां सब लिखेबा सेठी वेट करिया पई कहजी बो सेठी वेट करबा गोटे लोक आसीबो तो पानी ग्लास हम तो दबो हम पानी ग्लास पीबा आराम से बसिबा तापर जण को परे जणे जीवा सो जो जहां सब सेठी हबो से जो डोर जे खोले पई बसिची एवं जे भितरे चेयरपर्सन बसचती इंटरव्यू रो हेड समस्त इंप्रेस हवा दरकार दैट इज द थिंग so encounter needs to be impressed from the peon to the chairperson तो पियोन रु चेयरपर्सन पर्यंत समस्ते तमरो जो वे आमे जतो जण इंटरव्यू पय जाउची से सब बाबद रे केयरफुल हवा दरकार आ आमे से जो रूम रे बसुचु आजकल बसिबा तो बसु के तो देखिबा को नहीं इंटरव्यू रे जतोले रहबा सतोले तो कुहा हिच ना बढ़िया कि निजु को प्रेजेंट करबार अछि एठी आउ के देखुची के आमे पूरा गोड़ हाथ लंबे करी सोफा ऊपर बसि गेले तो सामना गोड़ बिटा टेकी देले से आरो पटे जो जण लोक आ जण आसले बसि परता जंती गोड़ हाथ टेकी बसले এবং आजकल बहुत जगह रे अछि यू आर ऑन सर्वेलेंस कैमरा सब लागि करी अछि सेठी भी देखा जाय परबो से एक्टिविटीज गुडा को भी मार्क्स करा जाय परता कि तुम केमती अछो यदि केही वाच करू नै तार अर्थ निजे निजर गार्ड हवा दरकार तो केही जने वाच करू नै कहि कि हमें किछ भूल काम करबा सेमति नै इंटरव्यू रे सो दे सी टू द टिट बिट डिटेल्स जैसे कोई आपको हायर करेगा तो जैसे मैं बोला कि आप जिस कंपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करोगे उसी का लोगो उसी का प्रेस्टीज आपके साथ जुड़ा जाएगा मतलब
तो इसलिए अपने आप का पर्सनालिटी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जैसे ही आप जाओगे तो लोग आपको देख के समझ जाएं कि ये इस कंपनी का होगा, ये ऐसे कर रहा होगा, इसे मतलब देखो कितना अच्छा, तो नया है, इनएक्सपीरियंस्ड है, वेरी न्यू है, बट he knows how to hold his personality, how to cope with the pressure, how to answer the questions beautifully so that everyone will be impressed. तो आपका जो स्ट्रेंथ पॉइंट है उसी को आप वहाँ केस करने के लिए कोशिश करोगे, उन लोगों को इम्प्रेस ये देने के लिए कोशिश करोगे कि आगे चल के वो लोग उनका जो डिसीजन है आपको रखने का ये गलत है। और लास्ट पार्ट में हम लोग हैं अभी, ये एक इंटरव्यू मतलब जो इंटरव्यू देने वाला उसके पॉइंट से हम सोच रहे थे, अभी जो इंटरव्यू लेगा मतलब उसके पॉइंट के बारे में भी एक पैराग्राफ है, उसी पैराग्राफ का कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको पॉइंट करके सुना देता हूँ और उसी के साथ हम एंड करेंगे हमारा आज का टॉक। तो मोस्ट मैनेजमेंट्स डू नॉट लाइक विथ रिसेंट ग्रेजुएट्स, जो इनएक्सपीरियंस रहते हैं डायरेक्टली फ्रॉम, जैसे आप कोर्स कंप्लीट करोगे और डायरेक्टली आप अप्लाई कर लोगे किसी जॉब के लिए, तो आपका चांसेस है कि यू शुड बी लिस्टेड आउट, आपको बुलाएगा कम बुलावा आएगा, इसलिए क्योंकि वो बोलते हैं कि टू ट्राई टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, डोंट बी ब्रांडेड एज एवरेज in an interview where thousands are trying their luck. How to do this? So the simplest way is to give concrete evidence of what you claim to be. आपका जो आप लिख के दिए हो कि मैं इसमें माहिर हूँ, उसी को आपको कैनकेस करना पड़ेगा, उन लोगों के सामने उसको दिखाना पड़ेगा। इनफैक्ट इट इज इम्पोर्टेंट टू पॉज एंड कलेक्ट योर थॉट्स बिफोर आंसरिंग। जैसे ही क्वेश्चन आपको आ जाता है वैसे फटाक से आंसर देने के लिए रेडी नहीं हो, मतलब थोड़ा टाइम आप ले सकते हो, किसी समय अपन नियंतु आराम से भावंतु से क्वेश्चन बाबत रे कौन कहले बेटर हम एभलिया क्वेश्चन आपन आगुर भी जे आसतो ताकू भी पचरा जाई पारे। तो जेमति गोटे एग्जांपल देइथिली मने थिबो से गोटे एसपी को पई से पचारली ताकू जे तमे कोन करबो दंगा हेछि बोली सुनिले, से कहला मु माने प्रथमे स्पॉट को पळेई, तो जो सी जहाँ बुझिले से माने जहाँ बुझिले सेटा होची गोटे करेजनेस रो कथा, गोटे पुलिस लाइन रे जे जीवो तार निजर गोटे करेज पा कथा, आउ आमे दंगा करी डरिबा से कॉल को भाबिबा कोन हेतिबो फोर्स नै कि जीवा बा अन्य काहा को पठे दबा एंती एबडा को परवर्ती पर्यायर कथा आसीबो। तेनु कथाटी होची प्रथमे आमे निजर से जानिकरी कहले कि न जानिकरी कहले सेटा बड़ कथा नै, बड़ कथा होची गोटे अलग प्रकार रे आंसरटा दबा। क्वेश्चन समस्त को से समान क्वेश्चन आसथिबो, तेनु टेक योर ओन टाइम, एथि कहबो को शेयर करउची इंटरव्यू रे सुनिला परे प्रथमे क्वेश्चन टे को आराम से सुनंतु, टिके टाइम नै करी भाबंतु, एवं तापर जो आंसर टे देबे से भाबंतु जे सेटा टिके यूनिक आंसर हबो, से बडा आंसर अन्य जने केही देई नथिबा कथा बा चेष्टा करबा कथा। सेमती हेले मझिरे टिके आई कांटेक्ट रखियो, जेमति कहूची आई कांटेक्ट रो कथा, जे आई कांटेक्ट टिके रखिची प्रश्नटी पचारला ताकू टिके मझिरे देखिबा कथा, डायरेक्ट ताड़ को देखिबानी आमे तळकु सबले मो पति की बा सीधा गोटे कांथरो को निर्दिष्ट कोण को एमति देखि के जदी आंसर देइ से माने भाबिबे जे आमे प्रेशर रे अछु आ कोनोसी प्रकार आमे इंटरव्यू टाको सेस करके जीवार प्लान रे अछु, तो से माने आमे जदी कोनोसी प्रकार रे करि करि बाहर करि पळैबा से माने भी हमको कोनोसी प्रकार बळिया ट्रीट करिवे, स्पेशल बळिया ट्रीट करिवे ना, तो आमे स्टैंड आउट हे परिबा नै। तो इंटरव्यू रे आमे जो इंप्रेशन क्रिएट करबा को चाहू सेटा करा जाई परिबो नाही, जदी सेटा करा गला नाही ताले हमर जो पर्पस अछि टू सेल आवर सेल्फ, टू मोटिवेट से मन को आमे मोटिवेट करबा, से माने हमको बाछिबे सेटा करा जाई परिबो ना, दैट इज द थिंग। तो लास्ट पार्ट रे हम आसबे गोटे रेफरेंस शीट आमे तयारी करि करि नबा, से रेफरेंस शीट रे में कोन कोन रखिबा, जेतेबेले भी जोठी भी जो इंटरव्यू पाई जाउछते से इंटरव्यू पाई गला बेले को हम गोटे रेफरेंस शीट हाथ गोटे चिट भलिया बा सांगरे बनैथिबा कथा जे मु सीवी रे कोन कोन पॉइंट्स लिखिछि बा बायोडाटा जो अप्लाई करिछि से बायोडाटा रे मो निज विषय रे कोन कोन कथा लिखिछि। जदि एक्स्ट्रा करिकुलर रे आपन को स्विमिंग आसे गोटे पॉइंट अछि, आपन लिखिछन हां मते स्विमिंग आसे, आ से जदि पछारले आपन केते किलोमीटर स्विमिंग करी जानिछंती, आपन मोर स्विमिंग जाननांती विषय लिखि दिछंती, सेमती करबा नै। से जो पॉइंट्स अछि से पॉइंट्स गुडा करे जहा जहा लिखाई छि आपन को गोटे नोट सांगरे करि के रखियो पड़िबो। सेथरे आ गोटे कथा अछि पॉसिबल किछि प्रकार रो आंसर्स, किछि क्वेश्चंस अछि, बहुत सारा बही आजिकली मिलुछि जो थ्री इंटरव्यू क्वेश्चंस अछि, आगो गो आरो बही गुडा डील कला बड़ मुहति किछि इंटरव्यू क्वेश्चंस कहिबी। तो सेथरे हम देखियो जे किछि इंटरव्यू क्वेश्चंस स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, जे गोटे एग्जांपल रा मैं नेइले दिटा आज जो यूनिट पढला बेलकू टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, निज विषय रे हमको किछि कोन
तो निज विषय किसी कहला बेलू जो 4टा कि 5टा सेंटेंस हमको कहବାକୁ पड़िबो आमे कोन जिंसटी कहबा को भली भाबरे 5टा जिंस सजेइबा ना तो निश्चय कहबा किंतु ता सहित आउ कोन जिंस 4टा एमती कहबा जोटा से को इंप्रेस करे माने खुशी हेबे पिलाटी जानि छि निज विषय कहबा कोन कहा जाय बोली जानि तो ऑब्वियसली आमे फर्स्ट टाइम कहूछु किंतु सेमती प्रकार हमको कहया पे पड़िबो दैट इज व्हाट वी कॉल तेणु गोटे हाथ में सीट आम सब रखा जे आम इंटरव्यू रे कौन माने जो जॉब आम जो सीवी लिखिचे सीवी रे कौन कौन पॉइंट्स देचे किछि क्वेश्चंस अछि तार आम ये करबा तापरे ठीक समय पंक्चुअल हबा आ पोलाइटनेस सेठी थ्रू आउट द इंटरव्यू पीरियड माने इंटरव्यू रूम भीतर को पसिबा एवं सेठी बसिकरी सेठु आसीबा पर्यंत सेठी तो पोलाइट हबा किंतु जो वेटिंग रूम रहबा जोठी आम हमर टर्न बा पाळी आसीला पर्यंत वेट करबा सेठी भी आम पोलाइट हबा एक्सट्रीम पोलाइट कि पोलाइटनेस हबको पड़िबा से चेयर रे बस जो पियनटी अछि ताको हमें वयस्क लोकटी हेई थाई पारे बा वयस्क लोक भी न हेई थाई पारे किंतु ता सहित हमें इनफॉर्मल वे रे काहे कथा हबा ताको भी हमें फॉर्मेलिटी रे कथा हबा दरकार सी भी इंप्रेस हबा दरकार जे हां जतकी पिला आस्थिले ता भितरु ई पिलाटी भलो तो जदि हमें सेमती करि परुछु हम पर्सनालिटी को जदि हमें सीटी टोटलिटी रे होल्ड करि परुछु ताले चांसेस अछि जे जॉब के हमको मिल जाई पारे तो पर्पस होछि हमें जतले पाठ पढुछु हम पाठ पढारो मूल पर्पस होछि हमें जॉब पाई ही पढुछु बेसिकली तो जॉब बा सेल्फ एम्प्लॉयड भी हमें जदि हबा ताले सेल्फ एम्प्लॉयड हेला बेले को भी हमको हमरो निजर पर्सनालिटी जो ट्रेट अछि हमरो जो लाइकिंगनेस डिसलाइकिंगनेस हमर जो स्ट्रेंथ अछि हमर जो वीकनेस अछि हमें वीकनेस को छाडी परिबा नै हमें शीघ्र रागी जाउछु ताको हमें छाडी परिबा नै किंतु गोटे सिचुएशन एमती क्रिएट करबा जे हम जो बळे सिचुएशन हेले हमें रागी जाउछु हमें से सिचुएशन रे जो के इन्वॉल्व कर दबा नै हमें अदर लोक को इरिटेट करबा नहीं जे से जदी इरिटेट हला हमको एंगर आसीबो मतलब से जदी इरिटेट हला नै तला हमें एंग्री हबा नै हमको से बळे सिचुएशन देखियो पड़ो जे हम वीकनेस जो रे अछि हमें सेटू आइदर साइड हबा बा एमती सिचुएशन क्रिएट करबा नहीं जे हम वीकनेस किस देन हमें क्लिक पारिबा तो विथ दिस इफ यू हैव एनी डाउट्स जदी आदिरो डिस्कशन काहर कोन किसी पत्र पत्र करबार अछि कहबा नले क्लास में एटी एंड करी खाली ब्लॉक 3 पढ़बा कहबा जदी काहर किसी प्रश्न अछि जहां हम सुनली जॉब माने सीवी प्रिपेयर करबा ठो आरंभ करी इंटरव्यू बोर्ड रे बसबा फॉर्मेलिटीज जोगिकरी बा बिहेवियर को सही रखिकरी कथावार्ता हबा पर्यंत इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेश्चन समस्त सब बुझिले काहर किसी क्वेश्चन नहीं गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर एक्चुअली हमें जेतेले इंग्लिश रे किछि लेखुछु तो सेतेले हमको टेंस दरकार पड़छि बट वर्बल कम्युनिकेशन रे टिके सेटा अनफॉर्मल हेले भी चालुछि तो सेमती काहे कि अछि एंती काहे कि माने कि कोला अनफॉर्मल हेले चलुछि एमती नहीं गोटे एग्जांपल देकरी तमे तुम क्वेश्चन टी पछा लेखिला बेले एती ग्रामर दरकार होची कहिला बेले ग्रामर दरकार होनी कहजे तो हां सर मींस जदी केते बेले ऊपर नीचे होची हेले भी एडजस्ट ही होची नहीं ऊपर नीचे होची कहले कोठी होची ऊपर नीचे जते बेले होची तते बेले हमें गोटे घरोई परिवेश रे अछे ना हां हां तो आम गोटे घरोई परिवेश रे अच्छे शुण जो आम गोटे घरोई परिवेश रे अच्छे आम जो घरे कहचे घरे आम नाउन प्रोनाउन को ध्यान दौने ना जो आम इंटरव्यू को जीवा जो स्पोकन फॉर्मेट रे कहले भी हमको ग्रामर जगह को पड़ो सेमती लंबा कहला बेले थोड़ा बहुत इंटरचेंज हो गले चलो जो ऊपर नीचे कथा कहूच टिके ऊपर नीचे हो गले चलो ये सेमती फासी देदेवे नहीं से कंटिन्यूटी हूँ बड़ कथा मझे टिके अधे ऊपर नीचे हो गले भी चलो किंतु मूल कथाटी हूँ से जहाँ जानवा चाहूँ तुम ताको सेटा कहूब सर हमें जहाँ स्टडी करूचे एग्जाम रे क्यों हिसाब रो क्वेश्चन आसीबो कि कोन से विषय रे टिक आईडिया दरकार थला एग्जाम रे क्वेश्चन को टाइप आसो माने को ए जो ब्लॉक आदि जो ब्लॉक जो हां सर ए ब्लॉक से फॉर्मेट किछि जेमति प्रीवियस ईयर अरे ए ब्लॉक पछाड़ी के क्वेश्चन दिया है कि नहीं प्रति चैप्टर रे क्वेश्चन दिया है
प्रति चैप्टर रे जो क्वेश्चन दिया है से भले क्वेश्चन आसीबो आ कोन माने किछि इंटरव्यू क्वेश्चन दिखाई तो इंटरव्यूअर रो क्वेश्चन तमोर आंसर तमे लिखिबो तो अंतर किछि डेज दिया हिथिबो ओटा डाउनलोड करछो तो ओटा डाउनलोड करछो ना हाँ 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 सर नहीं नहीं सेही प्रति चैप्टर जो हमें डिस्कस करूचे प्रति चैप्टर रो पछाडी किछि क्वेश्चन अछि ना तो सेही टाइप रो हाँ क्वेश्चन सर आसी हां सेही टाइप रो क्वेश्चन आसीबो सेही क्वेश्चन रो आंसर तो सेही पे दी दैछि ओही में क्वेश्चन रो थैंक यू आंसर सर दिया है टू प्रिपेयर योरसेल्फ हला हेलो सर हेलो हाँ सर ये जो हमारा इंटरव्यू है सर जो नर्वसनेस था सर जो था ना पहले जो हाँ हाँ नर्वसनेस हमको नर्वसनेस सर से जो जे चेयर पर्सन सर थे हमर हेड रे हाँ आमे कैंडिडेट हिसाब जो जो नर्वसनेस से हमर देखला पर माने सर हमरो देखिए सर हम नर्वस एटा हम कोन सिलेक्ट करिवे ना ना सर एक्सपीरियंस सर एटा कोन ना पड़वा नहीं नहीं माने तुम केते नर्वस हबो जे तुम यदि नर्वस है कि चेयर रू गडी पड़िबो ताले सिलेक्शन हबो नहीं ना सेटा चेयर रे सर से जो आपण पहले चेयर रे टेंशन ता सर जब तक तुम चेयर रे बसिचो 10टा क्वेश्चन रू 8टा 9टा क्वेश्चन रो आंसर एवं सही आंसर देई परुचो हाथ गोड़ थरुथिले थरुची तळे थरिबो ना ऊपर तार टेबुल टा अछि ना तेणु सेते पर्यंत तुमर चांसेस अछि बाकी जो तुम नर्वस है कि चेयर धरु धरु पड़ी गलो चेयर रे बसु बसु उठू उठू पड़ी होउचो ताले आ चांसेस नहीं हो कोन ना सर से कथा न सर हम जो पहले जो टेंशन सर केते सर से लोड संभाली परिबो सेने सर से माने नर्वस ता माने से 4% से देखिबे यार को केते नर्वस अछि माने की कहले एकला चेयर पर्सन अछि कि मु तो कहूची इंटरव्यू पैनल रे 10 ରୁ 12 जण लोक भी दरकार पड़ले अछंती तो 12 जण देखुचंती माने 12 ରୁ 24 जोड़ा आखी तमे जोड़े आखी रे आंसर दबो किंतु से माने 24 12 जोड़ा आखी तुमको देखुची दरकार पड़ले तेणु तमे किए तमरो नर्वसनेस को जज करूची तमे केम जानियो खाली चेयर पर्सन देखिले दबो बा दबोनी से कथा नुए से ओवरऑल अटेम्प्ट सिट पई माने सेतिरे समस्त नर्वस थांती से माने भी जानिचंती जे समस्त नर्वस थांती किंतु नर्वसनेस को टिके चालाकी रो सो हाइड करिवो डरिबो तो समस्ते डरिबाटा समस्ते डरिबे किंतु से बरे कहली सेति पई तो माउंटेन ड्यू रो एडवर्टाइजमेंट रो एग्जांपल दिल्ली डर के आगे जीत है तो बड़ा भाबिबो ना टिके डर रहइबो किंतु ता परे हम भाबिबो ना हमको जीति गिरी जिबार अछि सर हमें हम नर्वसनेस ता हमें भीतर चापी के रखे बाहर को देखेबानी ताको बस 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 माने धरो पेन टे धर के लिखियो को कुआ गेला पेन टे धरु धरु आंगुली गुडा को न थरुथुवा कथा आज्ञा आज्ञा हातीटा टिके दाउ दाउ करले चलियो सर मु भाबिली सर नर्वस ता तांका अगर देखेने से माने सिलेक्ट करिए अरे देखिले तुम सिलेक्ट करियो देखिले तुम सिलेक्ट करियो नहीं सर नर्वसनेस ता दाली चापी के साइलेंट हिसाब निज भीतर रखिया पड़ियो हां रखी पारले भलो आज्ञा आउ कहार कोन क्वेश्चन अछि गुड इवनिंग सर हेलो हेलो हां कुह उसपे कोन सर सीवी जो सेडा को टाइप रो जॉब रे दरकार हुए ना सब टाइप रो जॉब रे सब रे हो बायोडाटा सिंपल फॉर्म ता टर्म ता होची तार बायोडाटा अमेरिकन टर्म होची रेज्यूमे आरईएसयूएमई आउ आजकल रो नुवा टर्म रे हमें वेब टर्म बा इंटरनेट टर्म रे ताको सीवी का करिकुलम मीटर इतरे आउट के चांसेस अछि सेतरे कोन तार गोटे टेक्निक अछि तरीका से प्रथमे प्रोफाइल टा लिखो को पड़िबो आपन कैरियर गोल टा लिखो को पड़िबो आपन स्ट्रेंथ को लिखो को पड़िबो तापरे आपन एजुकेशनल डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स एमदी करी सीरियली देबे इतरे बहिर पछाडे अछि जदि डाउनलोड करि त पछाडे लिखाइ को पॉइंट्स केमति लिखा हो आज्ञा सर सीवी डा हमको मगा हितबो ना हमें निजे दबा नहीं नहीं निजर सीवी ना गोटे राइटिंग स्किल रे अछि ना मु जोटा आज डील कली यूनिट 7 रे लास्ट रे गोटे दिया हिची राइटिंग रे निजर सीवी टे प्रिपेयर करो कहिकरी क्वेश्चन टा सेया थिबो जदि सीवी रो क्वेश्चन आसिला ताले प्रिपेयर योर ओन सीवी लेखाबो प्रिपेयर योर ओन सीवी रे आपण निजर स्ट्रेंथ ए मु भलो गीत गाई पारे एटा गोटे स्ट्रेंथ पॉइंट रे जिवो मु भलो इंग्लिश रे कथा वार्ता करी जाने एटा आपण एडिशनल स्किल रे जिवो तो सेटा जॉब प्रोफाइल पे आपण हेल्प कला तापर आपण पर्सनल डिटेल्स देले आपण ना बापा ना डेट ऑफ बर्थ को स्कूल रे पढितले केते वर्ष कोठी के चिकन करछन कि नै से गुडा डिटेल्स सेंति रहबा कथा रहइबो किंतु ऊपर आपण कैरियर स्ट्रेंथ आपण जो निजरो स्ट्रेंथ अछि माने आपण पॉजिटिव साइड से गुडा आगरे रहइबो तापर गोटे कैरियर गोल आपण कोन बनिबो को चाहउछन आज्ञा जेम करन मु गोटे ब्यूटिशियन होबो को चाहउची
जदि आपण से लाइन रे जीवकु चाहउछथि के जने फिल्म लाइन रे जीवकु चाहउछि तो से निजको गोटे एक्टर बा एक्ट्रेस गोटे रेप्यूटेड एक्ट्रेस होबाकु चाहउछि बोली लिखु तार कैरियर गोलटा से तो फास्ट टू कैरियर एक्ट्रेस हबो सेमति नुय ते फील्ड रे थिले आकु जाय के से लेवल रे पहुंचको चाहउछि। आज्ञा सर धरा जो आमे गोटे जॉब पे अप्लाई करले तापर जो हमको इंटरव्यू पे डका हबो सेते बेला हमको सीवी देबा पे पड़िबो ना हमको सीवी प्रथमे दबो ना रिटन जदि अछि रिटन टेस्ट बोला तापर सीवी टा से जो कवरिंग लेटर हेतु प्रथम रो हम अप्लाई करबा जदि नाही रिटन टेस्ट जदि नाही ताहले से माने से सीवी रु ही शॉर्टलिस्ट करके डाकिबे सर सीवी टा माने हां से माने मगेइथिबे ना हमें एडिशनल देबा मगेइथिबे जदि आगुरु दबाको हेतिबो संगरे इंटरव्यू को गला बेले जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नबा ता संगरे भी गुटे सेट सीवी नै करी जायतो जेरेक्स सेट गुटे ओरिजिनल सेट नैतिबा ना ता संगरे जो जेरेक्स सेट नबा से जेरेक्स सेट संगरे सीवी टा जोड़ा है कि धरि के जायतो एटी समान को धरैला पर समान से सीवी देखि करी भी पचरी परंती बा आगुरु जदि अप्लाई करा है ताले से सीवी रु देखि करी भी पचरी परंती। आज्ञा सर एटा तो हमें निजे बनेबा जो A4 साइज पेपर है हां एहे माने कोन कहउ माने कि जानिबो कोन केमती अछि नेट रे बस सर माने निजे लेखि की करबा ना कंप्यूटर प्रिंटिंग ना केमती करबा ता इंप्रेशन करे पे निजे लिखिले भी चलो जदि कहार हैंडराइटिंग बही भलिया अछि से निजे लिखिले चलो किंतु सबले चांसेस होछि कोन कहार हैंडराइटिंग के पढी परिबो न पढी परिबो क्लमजी हो तेनु प्रिंट आउट पेपर रे बाहर करके रखि देले बेटर। आज्ञा आको आ जने के कोन प्रश्न पचरथलो को सर ये जो रिज्यूम जोड़ा सीवी सेटा नहीं सर हां रिज्यूम जोटा सीवी सेटा अच्छा ये जो प्ले स्टोर रो सारा आप में सारा मिलु जे क्रिएट योर रिज्यूम और सीवी अच्छा ये ना सर रिज्यूम और सीवी पर एका कथा रिज्यूम और सीवी साइड रे बायोडाटा भी लिखा होछ बाकी बायोडाटा टिके कम जिंस रे रहबो रिज्यूम ताठू आउट टिके अलगा जिंस रे रहउची सीवी आउट टिके एक्स्ट्रा जिंस रहबो सेते प्रोफाइल रहबो कैरियर स्ट्रेंथ रहबो निजर वीकनेस जो सीवी रो सर जो फुल फॉर्म कहले सर करिकुलम भिट ना लास्ट एटा को अपन न पढिले चलेबो करिकुलम भिटा सर सेटा माने कोन सर भिटा सर कोन छै कहले सेटा ओटे लैटिन वर्ड तार माने होची वाइटल पॉइंट्स वाइटल पॉइंट्स इट इज द वाइटल पॉइंट्स अबाउट योर करिकुलर एक्टिविटीज सब प्रकार स्ट्रेंथ वीकनेस सब को मिसे करी सेटा कोन सर लैटिन रो आसी ना कोन सर हां लैटिन रो को आउ कोन क्वेश्चन आउ काहरी कोन क्वेश्चन अछि कि ना बंद करबा हेलो एनी मोर क्वेश्चन सर काली कौन डिस्कस करियो ब्लॉक 3 ब्लॉक 3 ओके सर कंप्लीट ब्लॉक 3 ब्लॉक 3 कंप्लीट ब्लॉक 3 काली 4टा जको यूनिट ओके ओके सर क्लियर ओके सर अरे मजादार जिनस माने अछि अपन मन टिके पढि के आसिली भलो अले कम से कम डाउनलोड करि के बहिटा धरि कम हेलो तो सेल वी क्लोज आज पे क्लोज करबा ओके सर थैंक यू ओके थैंक यू देन थैंक यू सर।